Assalamu alaikum everyone. Walaikum Assalam. A very warm welcome to all our participants. Thank you for joining us for the final session of the Research Idea to Thesis Defense Bootcamp. My name is Maham Tariq and I am a student ambassador at Biotech Squad and I'll be your host for today's session. It feels like just yesterday we began this journey together. Over the past 4 weeks, we have explored every stage of the research process. From identifying a research problem and developing a proposal to conducting a literature review, designing methodology, analyzing results, managing references, and preparing a thesis for submission. Today's session brings ties it all together. The topic for today's session is presenting your research with confidence, presentation design, and thesis defense strategies. Writing a good thesis is only part of the journey. The ability to communicate your research clearly and confidently is what transforms months of hard work into a successful thesis defense. To guide us through this final session, we are delighted to welcome back Dr. Javiria Kadir. Dr. Javiria is an assistant professor in the Department of Biological Sciences at the Islamic International University, Islamabad. Ma'am, thank you for joining us again. We are delighted to have you with us for the concluding section of this bootcamp. Before we begin, just a few quick reminders. Kindly keep your microphone and camera turned off throughout the session. If you have any question, only raise your hand or type them in the chat box. You can also ask them during the question and answer session we will have in the end. Whether you are working on a research project or preparing for one in the future, I encourage you to stay engaged throughout the session because presenting your work with confidence is just as important as conducting the research itself. With that, I would like to invite Dr. Javiria Kadir to begin today's session. Over to you, ma'am. Thank you so much, Maham, for a very nice introduction. So, yesterday I took quite a lot of time of all you guys. So today I tried to keep it a bit comprehensive because बहुत सारी चीज़ें it's like कि हम आज उसको sum up कर रहे हैं. We are going to put everything in a nutshell जो अभी तक आप लोग का ये एक महीने का boot camp रहा है, right? So it's gonna conclude that today. The topic for today's talk is presentation design, Viva, and thesis defense strategies, right? कल तक हमने क्या किया था? कल से पहले तक आप लोगों ने सारा थीसिस लिखना सीखा कि क्या चैप्टर्स हैं, कैसे फॉर्मुलेट करते हो आप लोग, कौन से चैप्टर में क्या लिखते हो, क्या ऐड करते हो, राइट? ठीक है, इट वाज ऑल अबाउट द राइट अप. यस्टरडे हमने ये देखा कि अब हमारा जब राइट अप हो गया था तो अब हम कैसे अपने थीसिस को फॉर्मेट करें. How do we align it with the guidelines, the compliance thing that we discussed yesterday, right? अब जब हमारा thesis format भी हो गया, so the very last step is preparing your thesis defense, right? और आज के इस डिस्कशन में कल भी हमने थोड़ा सा स्लाइटली टच किया था कुछ एस्पेक्ट्स को, लेकिन आज के इस डिस्कशन में we'll be discussing the major points जो आपके प्रेजेंटेशन में होने चाहिए. आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, सही स्लाइड गलत स्लाइड क्या होती है, you will be judging the good or bad one. और उसके बाद एंड पे I have kept one activity today जिस पे one of the students would act as an examiner, the other would act as a student who is presenting, right? And examiner question पूछेगा and student will be responding, right? इसमें ये नहीं है कि आप कितना सही बताते हो कितना गलत बताते हो. आई जस्ट वांट टू सी कि इतने जो आप लोग के सेशंस गुजरते आए हैं अभी तक आप लोग की क्या लर्निंग हुई है एंड हैज इट बिल्ट एनी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू गाइस. आई एम श्योर आप लोगों पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया होगा इन सारे लेक्चर्स का एंड एवरीथिंग. बट एक शॉर्ट सी एक्टिविटी कंक्लूड करते हुए कि आई वुड लव टू सी हाउ यू गाइस रिस्पॉन्ड टू दोस क्वेश्चंस. एंड एग्जामिनर के लिए भी जो एक्टिविटी में जो एग्जामिनर होगा वो भी आप लोगों में से ही होगा. फर्स्ट आई डिसाइडेड दैट आई विल बी द वन asking the question also. Then I was like, no, asking a question, putting your question across the audience, this is also a skill,
right? Not everybody is good in that. तो ये चीज भी हम आप लोगों में से ऑडियंस में से कोई उठाएंगे, right? So it would be the ending activity. So presentation design, viva and thesis defense strategies. From research to a confident defense. So like always, I like to begin with the learning outcomes. At the end of this presentation, आप लोगों को बहुत clarity मिलेगी about presenting और building your presentation style, slides. ठीक है, कि किस तरीके से आप लोग अपने presentation को build up करते हो, create करते हो, develop करते हो, right? उसके बाद कल एक बात पे मैंने conclude किया था कि जब भी आप present करें अपना thesis या defense दे रहे हो, tell it in the form of a story. ठीक है, एक कहानी की तरह बताएं. कहानी में ऑडियंस या एग्जामिनर इंटरेस्टेड रहता है. जब आप बिल्कुल न्यूज पेपर रीडिंग करते हो, नोबडी इज रियली इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दैट. तो आप लोगों की एजेंडा ये होना चाहिए कि हमारा जिस दिन डिफेंस है, हम इस तरह से प्रिपेयर करें कि हम उसको एक स्टोरी से सुनाएं कि वहां से मैंने शुरू किया एंड एवरीबडी शुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द एंड, कि ओ इसने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर एंड पे क्या हुआ होगा, राइट? This is the kind of interest you want to develop in your audiences and especially your examiner, कि उसको शौक हो ये जानने का कि इसके रिजल्ट्स क्या आए होंगे और what he or she has concluded in the research. Okay? तो ये जितने भी लर्निंग आउटकम्स हैं, ये साथ हम हर स्लाइड में देखते चले जाएंगे. सबसे पहला आइस ब्रेकर. Why do students lose mark in the defense? अपनी चैट पे लिखिए आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है कि स्टूडेंट्स मार्क्स क्यों लूज करते हैं डिफेंस में. डिफेंस में मार्क्स लूज करने की वजह पूछ रही हूँ. इट हैज नथिंग टू डू विद द थीसिस राइटिंग. ओके सादिया, यस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. व्हाट एल्स? कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से मार्क्स कम मिलते हैं. और क्या वजूहत हो सकती हैं? Guys, why are you not active today? Come on. Last minute anxiety, yes. Giving wrong answer. To not answering questions, yes. Low confidence, how to present your content, yes. Not presenting your thesis effectively, yes. Okay, उस दिन एक चीज, lack of preparation. Yes. That's also one valid point. No grip on research. Weak justifications. Yes. All of these points are very right. ठीक है. अब ये वो आप लोग जितना भी ये आपने बातें बोली है ना कहीं it has relation to the question answer session. कि आपका वाइवा हो रहा है और आपसे पूछा जाए कि सवालात पूछे जा रहे हैं और ये सारी बातें मोस्टली आप ये ग्रिप नहीं है, वीक कमांड है, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, ये सब चीजें. ठीक है. दिस इज वन ऑफ द रीजंस यू आर गोना लूज मार्क्स. ठीक है. डिफेंस में इन सारी रीजंस के अलावा एक और रीजन ये भी है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं बनी हुई. इतनी दफा जब हमारी GRCs होती हैं या बोर्ड की मीटिंग्स होती हैं, उसमें ये देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे एट टाइम्स उन्होंने अपना थीसिस अच्छा किया होता है, सारा कुछ लिखा है, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन में इतनी गलतियां होती हैं कि जो एग्जामिनर है या जो कमेटी बैठी होती है वो सेकंड थर्ड स्लाइड पे जाके कहती है बस आगे प्रेजेंट ना करो. राइट? व्हाई? बिकॉज द प्रेजेंटेशन इज सो ऑफ फ्रॉम द बिगिनिंग. आपको स्लाइड 1 थोड़ी हिली भी लगी, स्लाइड 2 पे आए वो भी ऐसे ही लगा कि यार ये क्या ना, इसने फॉर्मेट अच्छा रखा हुआ है, इतना छोटा सा फॉन्ट रखा हुआ है, मुझसे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा, बुलेट्स गलत डाले हुए हैं, ये कलर कितना गंदा इसने लगाया हुआ है, ये तो देखने में मजा नहीं आ रहा. राइट? तो फोर्थ पे पहुंचने से पहले ही आपकी जो कमेटी होती है वो कहती है नो बेटा, वी डोंट रियली लाइक योर प्रेजेंटेशन, आप दोबारा अपेयर हो. ठीक है. एंड देयर आर मेनी टाइम्स व्हेन द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग कि नहीं मैं आगे मेरी सुन ले, बट the committee members at times are not willing to listen to the next. Why? Because आपने आपके presentation को देख के उनको ये impression गया कि आपने बहुत non seriously अपनी presentation तैयार की हुई है. Right? So this is the importance of a good presentation.
आप लाख अच्छा काम कर लो, अगर आपने प्रेजेंटेशन सर से उतारी हुई है, उसको रश अप किया हुआ है, इट विल शो अप, इट विल शो अप इन योर डिफेंस, राइट? आपके पास हो सकता है जस्टिफिकेशन है या नहीं, वो तो एंड पे सवाल व जवाब में पता चलेगा। उससे पहले ही अगर आपको फेल कर दिया जाए या कहा जाए कि आगे नहीं सुननी है, यू आर गोइंग सो ऑफ, योर प्रेजेंटेशन इज सो ऑफ, राइट? तो ये सारी चीजें टुगेदर दे मेक अ गुड प्रेजेंटेशन, right? Question, answer, justification, everything, including how you make your presentation, right? This is how much important it is कि आपकी presentation अच्छी बनी हो। कोई भी नहीं चाहता कि मुझे दूसरी स्लाइड पे कहा जाए चलो भाई रुक जाओ, आगे प्रेजेंट ही ना करो। तो हम कैसे अपीलिंग बनाए इस चीज को कि और कोई भागे ना हमारी प्रेजेंटेशन सुनने से। हम प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी बनाए। एट टाइम बच्चे जो है उनका काम इतना अच्छा नहीं होता, प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी बनाई होती है कि वो भी कवर हो जाती है चीज, बिकॉज द प्रेजेंटेशन इज सो गुड, राइट? ऑलराइट, अब हम ये देखो, ये वो कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स लो मार्क्स देते हैं डिफेंस। टू मच टेक्स्ट, टू मच टेक्स्ट, स्लाइड रीडिंग। कल मैंने आपको कहा था कि स्लाइड रीडिंग कभी भी नहीं करनी प्रेजेंटेशन में, इट डजंट लुक नाइस एट ऑल। मैं तो बाज़ औक़ात जैसे जैसे आप बहुत ज़्यादा सीनियर होते चले जाते हो, उतनी ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। बीइंग अ टीचर ऑल्सो, आई एम नॉट दैट सीनियर, बट मेरे जैसे प्रोफेसर्स हैं ये वो, उनको इतनी कमांड हो जाती है, दे डोंट इवन ब्रिंग देयर नोट्स, राइट? And this is something I also try to follow in my lectures. I never bring any material with me to teach from. Why? Because this shows command. आप अगर उधर वो पेपर्स खोलने लग जाएंगे, आई हैव सीन अ कपल ऑफ डिफेंस, यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, जवाब देने के लिए कोई पर्चे उठा के कोई प्रिंट करा के चीजें लाए होते हैं अपने साथ, और उसके बाद खोल खोल के देखने लग जाते हैं कि इसका जवाब कहाँ पे होगा। इट्स सो ऑफ, नोबडी लाइक्स दैट, ठीक है? ये वाली चीज बिल्कुल मुनासिब नहीं लगती। सेकेंडली, जब आप रीड ही किए जा रहे हैं, इट ऑल्सो शोज नो कमांड, इट शोज कि आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, आपको अपने काम पे कोई कमांड नहीं है। दैट इज व्हाई आपको खुद स्लाइड्स देखनी पड़ रही है, पढ़नी पड़ रही है लोगों को बताने के लिए, राइट? सो यूजिंग हैंडआउट्स, रीडिंग स्लाइड्स इज नॉट अ गुड आइडिया व्हेन इट्स योर डिफेंस। आपको एक रफ सा आइडिया चाहिए होता है स्लाइड से कि अब नेक्स्ट स्लाइड पे आपने ऑडियंस को क्या दिखाना है, राइट? आपने वो स्लाइड्स एक्सप्लेन करनी है। यू डोंट हैव टू रीड स्लाइड्स, यू हैव टू एक्सप्लेन दो स्लाइड्स। यानी तस्वीर जो हमें दिख रही है बीइंग एन एग्जामिनर, वो आप हमें कैसे समझाते हो। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज्ड टू डू ऑन योर डिफेंस डे, राइट? अब तीसरी बात देखो, वीक स्टोरी। आप कहते हो कि वो बाजू का देखो, जब हम कह रहे हैं ना कि स्टोरी की फॉर्म में बतानी है, द स्टोरी मस्ट बी इंटरेस्टिंग, ठीक है? वीक स्टोरी लाइन नहीं होनी चाहिए। मैं एक दिन गया, मैंने एक पेशेंट देखा, वो बहुत बीमार था, मैंने पूछा आपको क्या मसला है, उसने मुझे कहा मुझे फलां कैंसर है, तो मुझे हुआ मुझे इस कैंसर पे काम करना चाहिए, राइट? There are thousands of patients, there are thousands and millions of patients who are suffering from such diseases, even worse diseases, right? तो ये तो एक वीक स्टोरी लाइन हुई ना कि आप एक जगह पे गए, आपने हॉस्पिटल में एक पेशेंट देखे, आपको मैंने डिजीज ही वहां से उठा ली, राइट? ये वीक स्टोरी है। आई एम नॉट सेइंग कि डिजीज को आपको स्टडी नहीं करनी चाहिए, इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है, बट दिस इज नॉट हाउ यू आर गोना टेल, ठीक है? यू नीड टू रिलेट टू द प्रॉब्लम अपनी कहानी सुनाते हुए। प्रोफेशनल टच, इमोशनल टच एंड योर इंटरेस्ट, एवरीथिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ योर स्टोरी, ठीक है? कि मैंने क्यों इस चीज पे काम किया। पुअर कॉन्फिडेंस, पुअर कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये पुअर है तो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन में आपका वो कॉन्फिडेंस आपके फेस पे दिखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे दिखता है, आप शेकी होते हो, आप रीड करते हो, आपसे सवाल पूछा जाए आप मेंटली ऑफ हो जाते हो, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस इज द की फीचर। कैन नॉट आंसर क्वेश्चंस, जैसे अभी आप बहुत सारे बच्चों ने लिखा। पुअर स्लाइड डिजाइन, पुअर स्लाइड डिजाइन इज ऑल्सो a critical part. स्लाइड पे को कभी भी हमेशा एक बात याद रखना आप लोग, स्लाइड इज पावर पॉइंट, इट्स नॉट वर्ड जिसके ऊपर आप लोग वो पैराग्राफ लिखना शुरू करोगे, आखिर तक लिखते चले जाओगे। नो,
PowerPoint means bullets. PowerPoint का नाम PowerPoint इसलिए रखा गया था कि इसमें आप चीजें पॉइंट्स में बताते हो. That is why it was called so. तो अगर आप पॉइंट्स वाले फीचर को यूज करने के बजाय उसमें पैराग्राफ्स लिखोगे, लंबे लंबे जुमले लिखोगे, doesn't make sense. It doesn't look nice either, right? And then weak conclusion. So these are some of the things जो कि आपके मार्क्स कम करती हैं. So इसका ये मतलब हुआ कि ये सब वो चीजें हैं जो हमने अपनी प्रेजेंटेशन में जिनको इम्पोर्टेंस देनी है. आप लोग के जब कभी डिफेंस होंगे इन फ्यूचर या कभी हुए होंगे, जो चीजें कंसिडर करने की हैं वो ये है कि आप लोगों ने कभी स्लाइड रीडिंग नहीं करनी. आप लोग की स्लाइड्स क्राउडेड नहीं होनी चाहिए. ये नहीं कि वो पूरी पावर पॉइंट स्लाइड पे लफ्ज ही लफ्ज, जुमले ही जुमले. नो, राइट? ट्राई टू कीप बुलेट्स. अभी हम आगे 6x6 रूल पढ़ेंगे. वो रूल ये कहता है कि एक स्लाइड पे 6 से ज्यादा बुलेट पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम. ठीक है? सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव बनेगी. हम देखेंगे उस प्रेजेंटेशन को और हमें लगेगा ओह वाओ, सारी बात कर दी है, लेकिन इसने बहुत ओवर क्राउड भी नहीं किया अपनी स्लाइड्स को. ठीक है? सो दीज आर ऑल दोस पॉइंट्स. नाउ एनाटॉमी ऑफ अ विनिंग डिफेंस. एनाटॉमी क्या होती है? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. What is anatomy? What is anatomy? Anatomy जैसे हेल्थ साइंसेस में हम लोग पढ़ते हैं, anatomy is structure, internal structure क्या है किसी चीज का, right? So the anatomy of a winning defense. अगर आप चाहते हो कि आपके डिफेंस जो है वो विनिंग डिफेंस हो, तो क्या चीजें हैं जो उसमें लाजमी होनी चाहिए, जिस पे आपको काम लाजमी करना चाहिए. नंबर 1, स्ट्रॉन्ग रिसर्च. ठीक है? रिसर्च टॉपिक, यस यस. सो रिसर्च टॉपिक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. स्टोरी लाइन, आप किस तरह से उसको स्टोरी की फॉर्म में बताते हो, वो लाजमी होनी चाहिए. स्लाइड्स आपकी क्लीन टाइडी स्लाइड्स होनी चाहिए. By clean, I doesn't mean कि very washed हो, साफ सुथरी. By clean, I mean less information through less text, but giving complete meaning. Bullet points का मकसद ये नहीं होता कि आपने अधूरी बातें करनी है. No. Bullet point का मतलब होता है कि कुछ कहे बगैर सब कह दो. Right? You might be writing just a short sentence, short point, लेकिन उसको देख के हमें स्लाइड से पता लग जाएगा. ठीक है? उसके बाद आपकी डिलीवरी मैटर करती है, क्वेश्चंस को कैसे आप एड्रेस करते हो. ये सब चीजें अगर होंगी तो डेफिनेटली योर डिफेंस विल बी अ विनिंग डिफेंस. इट वुड बी अ सक्सेस, राइट? सो आप लोगों ने जब कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करना है, ये 5 पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमी याद रखने, कंसिडर करने हैं अपने पास कि मेरी रिसर्च बैकग्राउंड सॉलिड है, स्टोरी मेरी तैयार है. ठीक है? कहानी घड़नी नहीं है, कहानी की तरह बताना है. ठीक है? एवरीथिंग मस्ट बी ट्रू, एग्जैजरेशन नहीं होनी चाहिए. एक और एग्जैजरेशन का मतलब आप लोग समझते होंगे, बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करना. हमारी पाकिस्तानियों की बहुत आदत होती है ना, बहुत लंबी छोड़ते हैं हम लोग, राइट? एट टाइम्स क्या होता है कि हम लोग जब अपना डिफेंस दे रहे होते हैं या क्या दे रहे होते हैं, हम ऐसी बातें उसमें बोलते हैं कि वी डिड, हमने थीसिस में भी बड़ा कुछ लिखा होता है, मैंने ये किया तो उससे ये पता चला कि ये जीन ही सारा कुछ कर रही है. ठीक है? आप एक जीन पे काम करते हो, मर के एक जीन पे हम काम करते हैं, MS में, DS में ऐसा ही होता है, और उसके बाद हम उसकी म्यूटेशन एनालिसिस करके कहते हैं कि भाई यही है वो जो सब कुछ करती है, राइट? हमें पता है, मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि BKP मोस्टली स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल साइंसेस के हैं. हमें ये बात पता है कि हमारा जीनोम बहुत बड़ा है, 33,000 जीन्स हैं. पता नहीं उन जीन्स की कितनी आइसोफॉर्म्स हैं, कितनी म्यूटेशंस हैं उनके अंदर, राइट? और हम जब काम करते हैं, हम एक किसी पहलू पे काम करते हैं, और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि यही जीन रिस्पॉन्सिबल है, यही म्यूटेशन ने कैंसर किया, और तो कुछ है नहीं. दिस इज कॉल्ड एग्जैजरेशन. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग द रियलिटी, राइट? आप लोगों ने स्टडी किया, आपको लगा कि हाँ
मेरे वाले पेशेंट्स में इसकी वजह से ये हो रहा है, राइट? तो आप जब भी प्रेजेंटेशन दो, जब भी थीसिस करो, एक बात आप हमेशा याद रखना कि आप लोगों ने वर्ड यूज करना है, इट कैन बी अ पोटेंशियल कॉज। कभी भी आप अपने थीसिस में इट कैन बी, आप ये लिख सकते हो, इट कैन बी अ पोटेंशियल कॉज, इट कैन बी अ पॉसिबल कॉज, राइट? इट कैन बी अ प्लॉजिबल कॉज। सबका मतलब क्या है? हो सकती है। आपने कभी नहीं ये बात लिखनी कि माय जीन इज द कॉज ऑफ कैंसर। नो, बिकॉज इतना सा काम करके आप इतनी बड़ा नहीं बात कर सकते कि मेरी जीन सब कर रही होती है, राइट? तो एग्जैजरेशन को अवॉइड करना है, आपने रियलिटी बतानी है ऑडियंस को, अपनी रियलिटी के साथ ही जो जो आपको दिखा है आपने वो ही बताना है, और जितना दिखा है उतना बताना है। यू डोंट हैव टू स्ट्रेच इट कि भाई क्या ही कर दिया है, राइट? बिकॉज जब आप बहुत एक्स्ट्रा के बात करते हो आप तभी फंसते हो। when you are very specific, it's never hard to defend yourself. बट जब आप कहते हो मैंने ऐसे किया तो मुझे लगता है ऐसे होगा, तो ऐसे होगा, तो वैसे होगा, तो वैसे होगा, वो इतने आप पंडोरा बॉक्स खोल देते हैं और फिर उसी पंडोरा बॉक्स को डिफेंड करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, राइट? सो वन थिंग, बी प्रीसाइज। प्रीसाइज, छोटी छोटी टू द पॉइंट बात करें, बी वेरी स्पेसिफिक। जो काम किया है उसी की बात करें। अगर कोई फाइंडिंग मिली है तो उसको कहें ये हो सकती है, यही है। नो, ऐसे नहीं कहते, ठीक है? सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आप लोगों ने प्रेजेंट राइटअप के टाइम पे भी ध्यान में रखनी है और आप लोगों ने प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी ध्यान में रखनी है, राइट? ओके, सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, यस, कल आप लोग को एक बात याद होगी, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों की प्रेजेंटेशन में वो जो फाइनल डिफेंस की प्रेजेंटेशन बनाओगे उसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसमें लिटरेचर रिव्यू की स्लाइड्स नहीं होंगी, उसमें आपके डिस्कशन की स्लाइड्स नहीं होंगी, राइट? ये जो गोल्डन रूल की स्लाइड है, ये जो मैंने इसलिए डाली है ये बताने के लिए कि आपकी प्रेजेंटेशन में ये बेसिक हेडिंग्स हैं जो होनी चाहिए। अगर आप इन हेडिंग्स को कवर कर रहे हो, आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ट। बेशक वो मिला के टोटल 10 स्लाइड्स बने, 12 बने, बट दीज आर कम्युनिकेटिंग द होल थिंग। बिकॉज जो जगह घेरता है वो आपका रिजल्ट होते हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत रिजल्ट्स हैं, तो आपकी स्लाइड्स वैसे ही 30-40 को पहुंच जाती हैं। अगर आपने थोड़ा काम किया है तो 4 रिजल्ट्स हैं, आपकी स्लाइड्स वैसे ही थोड़ी रह जाएंगी, राइट? सो इट इज द अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स जो कि डिसाइड करती है कि प्रेजेंटेशन कितनी बड़ी होगी, राइट? हमने प्रेजेंटेशन की, ऐसे नहीं कि मेरे दोस्त ने जो है वो मेरा जो क्लास फेलो है उसकी कल मैंने स्लाइड देखी है, वो एक दूसरे से पूछते नहीं है यार तुम्हारी स्लाइड्स कितनी बनी है, यार मेरी तो 40 बनी है, यार मेरी तो 15 बन रही है, चलो यूं करता हूँ वो इंट्रोडक्शन की ना 2-3 और डाल देता हूँ। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आपकी 15 आपके काम के लिए जस्टिफाइड होंगी और उसकी 40 शायद उसके काम के लिए जस्टिफाइड हो। सो यू डोंट रियली नीड टू काउंट द नंबर ऑफ स्लाइड्स। आपका ये जो गोल्डन रूल है ये फॉलो होना चाहिए। आपको बताना है कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, कौन सी डिजीज उठाई है, क्यों उस डिजीज पे काम करना क्यों जरूरी था। देन रिसर्च गैप, ये जो गैप है ना ये लिटरेचर से मिलता है। अगर आप लिटरेचर आपने स्टडी नहीं किया हुआ, लिटरेचर रिव्यू नहीं किया हुआ, आप ये गैप बता ही नहीं सकते, ठीक है? गैप क्या होता है? गैप होता है कि दुनिया ने क्या काम कर लिया और क्या अभी तक हुआ ही नहीं है। तो आप क्या काम करना चाहते हो जो नहीं हुआ हुआ, आप वही तो नहीं करना चाहते ना बार बार जो किसी ने पहले भी किया हुआ है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई गैप। अगर आपने ये जानना है कि क्या काम नहीं हुआ हुआ, उसके लिए वो पढ़ना पड़ेगा जो काम हुआ हुआ है, ठीक है? सो गैप आइडेंटिफाई करने के लिए आपको लिटरेचर स्टडी करना पड़ता है। फिर ऑब्जेक्टिव बता दो। पहले आपने कहा कि ये प्रॉब्लम है, फॉर इंस्टेंस जैसे मैं हमेशा ब्रेस्ट कैंसर की एग्जांपल देती हूँ, मैंने कहा पाकिस्तान में हर 7 में से 1 औरत को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। इट्स अ वेरी हाई रेट एंड वेरी अलार्मिंग। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि ऐसे प्रॉब्लम जो कि इतना रैपिडली फैलता चला जा रहा है आप उसको स्टडी करो? यस, दिस इज माय रैशनल। मैंने प्रॉब्लम बताई, क्यों बताई कि इतना इंसिडेंस हो गया हमारे मुल्क में, सो आई वांट टू स्टडी इट। अब बात ये कि स्टडी तो औरों ने भी किया हुआ है, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि मैं क्या स्टडी करूं? मैं लिटरेचर रिव्यू करूंगी एंड मैं देखूंगी क्या गैप है जो उन्होंने स्टडी नहीं किया हुआ।
उसके बाद अगर मैं डिसाइड करूंगी अपने ऑब्जेक्टिव्स कि मेरे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, अब उन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए आप मेथडोलॉजी डिवाइस करते हो कि मैं ये मेथड करूंगा तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, मुझे पूरा हो जाएगा, मैं ये मेथड करूंगा तो ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। अब मेथड्स करके हमने परफॉर्मेंस कर ली, लैब वर्क कर लिया, उसके बाद क्या है, सारे रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे, रिसर्च फाइंडिंग्स आ जाएंगे, अब हम वो बताएंगे, उसके बाद उसको कंक्लूड करेंगे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि दुनिया में क्या आ रहा है, राइट। सो दिस इज अ स्लाइड टेलिंग यू कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन, आपकी डिफेंस प्रेजेंटेशन। इसके अलावा मार्क कर लो ये बात, इसके अलावा आपका एमएस है, आपका बीएस है, आपकी पीएचडी है, इसके अलावा कोई हेडिंग्स आपकी डिफेंस में नहीं होनी चाहिए। एमएस में थोड़ा काम है, बीएस में उससे भी थोड़ा, पीएचडी में बेतहाशा काम है, बट काम ज्यादा होने से क्या बढ़ रहा है, रिजल्ट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी स्लाइड नंबर्स बढ़ता चला जाएगा, बट आपकी हेडिंग्स एट द एंड ऑफ द डे यही हेडिंग्स हैं जो आपने प्रेजेंटेशन में कवर करनी है। सो आई होप कि आप बच्चे जो आज का ये लेसन ले रहे हो, आप लोग की प्रेजेंटेशन में इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। एंड टेल योर फेलोज ऑल्सो कि राइट वे क्या है क्या नहीं। अब यहाँ पे एक और जो गोल्डन रूल में एक और गोल्डन रूल है, वन स्लाइड वन मैसेज, एक स्लाइड पे एक मैसेज दो। और ये क्यों, बिकॉज आप क्राउडेड नहीं करना चाहते अपनी स्लाइड्स को। इट्स नॉट ए गुड वे कि आपने सारे ग्राफ एक स्लाइड में डाल दिए, नो, यू कैन स्टिल ऐड वन ग्राफ पर स्लाइड, यू कैन स्टिल ऐड टू ग्राफ्स पर स्लाइड, ठीक है। काफी दफा मैंने देखा है बच्चे कहते हैं उससे स्लाइड ज्यादा हो रही थी, सो व्हाट, आप लोग की स्लाइड की कोई लिमिटेशन नहीं है कि नंबर इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, यू कैन मेक एज मेनी स्लाइड्स एज यू वांट, बट आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपकी डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं, मैं आपको दो ग्राफ्स दिखाती हूँ और उसमें आप लोग मुझे बताओगे कि कौन सा गुड है, कौन सा बैड है। चलो, कैन यू सी, या, ऑलराइट। सो हमारे पास ये दो ग्राफ्स हैं, ठीक है, दो स्लाइड्स हैं, सॉरी, ये दो स्लाइड्स हैं, एक पहली स्लाइड आपके पास है, एक आपके पास दूसरी स्लाइड है। आप मुझे ये बताओ कि इसमें से आपको क्या लग रहा है कि कौन सी स्लाइड, अभी हमने इतना पढ़ा कि ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ठीक है, उन सारी बातों को जहन में रखते हुए आप मुझे बताओ कि कौन सी स्लाइड आपको लगता है अच्छी है, राइट वाली अच्छी है कि लेफ्ट वाली अच्छी है। फर्स्ट वन, या फर्स्ट वन, गुड, लेफ्ट वाली, यस, राइट। साजिदा को राइट अच्छी लगी है, क्यों भाई? साजिदा आगे बस, reasons, I want reasons। साजिदा आपके क्या रीजन है राइट वाली को बेस्ट कहने के? नो सॉरी, इफ दैट वाज इंटेंशनल आप बता सकते हो, यही तो होता है ना कि हम डिस्कस करें इसको, ये आपसे बाय मिस्टेक हुआ है या वैसे ही आपको वाकई राइट वाली अच्छी लग रही है? हेलो, ओके, सो अब आप लोग सर बुलेट पॉइंट्स, शॉर्ट टेक्स्ट लेयर, फोटोग्राफ, यस यस, राइट, बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स, वेरी राइट। ओ ओके 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 साजिदा, आई थॉट कि आपको लग रहा है कि वही अच्छी है, दैट्स फाइन जी। किरण ने कहा बुलेट पॉइंट्स, वेरी वेरी राइट। अभी मैंने आपको कहा था कि पावर पॉइंट इज अबाउट पॉइंट्स, उधर क्या लिखा हुआ है राइट वाली में, उन्होंने पूरा पैराग्राफ ऐड किया हुआ है, ठीक है, दैट्स वेरी रॉन्ग, बट लेफ्ट वाली में बुलेट पॉइंट्स है। फिर शॉर्ट टेक्स्ट, पैराग्राफ्स नहीं लिखे हुए, छोटी छोटी सी लाइनें हैं, फ्रेजेस हैं, ठीक है। और फॉर्मल ग्राफ, वो ग्राफ देखें। कलर चॉइस, कलर चॉइस इज सो बैड राइट वाले में, आप कभी भी इस तरह पीले नीले रंग नहीं डालते हो कलर्स वो स्लाइड्स में, यू ऑलवेज ट्राई टू लुक, टू मेक इट लुक डिसेंट, ठीक है।
तो इतने रंग बिरंगे नहीं चाहिए होते. Even if you are a girl, you can't go for colors in presentation. Okay? It's always good to have a white background. It's always good to have light blue, light green, very light shades. Pink, yellow, ये भी अगर आप use करना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल lightest of shades पे जाते हो. Because it always looks good that way. But I always say that the presentations and try to keep white background, off white, white with blues. It always looks decent. ठीक है, जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाओ. अब लेफ्ट वाली बहुत नीट लग रही है और राइट वाली बहुत ही गंदी लग रही है. ठीक है, अब और क्या गलती है? क्लीन एंड इजी. यस यस यस, टू बी सीन एंड अंडरस्टैंडिंग. वेरी राइट अरूज. फाइंड आउट मोर मिस्टेक्स. हम देखना चाह रहे हैं ना कि भाई हमें क्यों बुरी लग रही है राइट वाली स्लाइड. जो चीजें किरण ने बता दी है, अरूज ने बता दी है, वो दोबारा नहीं बतानी आप लोगों ने. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड बुलेट पॉइंट इन ऑल ऑफ दैट. कलर स्कीम मैंने आपको बता दी. प्रोफेशनली ब्लंट लग रही है, बिल्कुल. Zainab, I like the expression. Professionally blunt. Very right. Very right. Great results. Yes. Great results क्या होता है? I always say अभी I have been reading my student thesis lately और मैं देख रही हूँ कि उसमें कई दफा बच्चों ने लिखा होता है कि great levels gene expression was great. तो ये ग्रेट वाला क्या चीज है? ठीक है, फलां केमिकल एंटर्ड द सेल, फुल स्टॉप. इट डिड दिस एंड देन दिस. ये क्या है? दिस इज नॉट हाउ यू डू साइंटिफिक राइटिंग. दिस इज नॉट हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ साइंटिफिकली. साइंस में कुछ इस तरह नहीं होता कि वो फिट हो गया, ठीक है, ग्रेट हो गया, वाओ सिनेरियोस नहीं होते साइंस में. Science में it's like something has increased, something has decreased. Science में बहुत simple normal English is very right. ठीक है, and अब तो recently चीजें ऐसी हो गई हैं कि there was a time जब हम पहले review papers लिखते होते थे तो they were like 40 pages. अगर आप पुराने review papers उठाओ वो तो खत्म ही नहीं होता जब आप उन्हें पढ़ना शुरू करते हो. But recent years में even the journals are not accepting that long review papers. They are giving us word count. Why? Because time is running so fast these days. Nobody has time to read unnecessary things. Everybody wants the quality aspect of everything. It can be your presentation, it can be your thesis, it can be your publication, anything. Right? Everybody wants के quality और direct message बताओ, काम की बात करो. Right? तो एक तो ये कि informal terms आपने कभी use नहीं करनी है. ठीक है? It seems really good. I have read it in a thesis. The results seem really good. What kind of expression is it? You are not talking to your friend. You are not chatting with somebody. Okay, result seems very good. Great results, right? So this is highly informal and unprofessional way of describing things. ठीक है, अगर आप वो ग्राफ देखो आपको पता चलेगा कि वो जो येलो वाला पार्ट है उसके ऊपर भी कई टेक्स्ट, आधा उसके ऊपर आ रहा है, आधा उससे बाहर गया हुआ है. दिस इज ऑल्सो नॉट राइट. यस, ग्राफ सही जगह पे होना चाहिए. और आप देखो एक और बात, कंक्लूजन बीच में ही घुसाई हुई है. कैन यू सी दैट? कंक्लूजन बीच में ही डाला हुआ है. आप रिजल्ट बता रहे हो, ठीक है, कि मेरा ये रिजल्ट आया है, एंड आप वहीं पे एक डब्बा डाल देते हो कंक्लूजन. भाई there should be a separate slide for conclusion. अभी हमने बात की one slide one message. आपकी इस स्लाइड पे आप अगर रिजल्ट बता रहे हो तो just communicate results. No need to write down the conclusion there. We'll be writing down the conclusion later. ठीक है? So very good guys, very good. Let's jumble up. Yes, then brilliant. Very right. A super crowded slide, right one. Okay, now coming to the right. So आप सब बच्चों ने बिल्कुल सही जज किया. ठीक है, तो गुड एग्जाम्पल हमारी स्लाइड की क्या थी? ये लेफ्ट वाली. और जो राइट वाली है ये बैड एग्जाम्पल थी.
ठीक है, जैसे अभी जैनब ने भी कहा कि जम्बल्ड अप टेक्स्ट है, एवरीथिंग, बिजी स्लाइड्स हैं, क्राउडेड स्लाइड्स हैं, रेनबो कलर यूज किए हुए हैं विच इज नॉट नीडेड, ठीक है, क्लिप आर्ट डाली हुई है बीच में, राइट, इन चीजों की जरूरत नहीं होती, क्लिप आर्ट इज हाईली अनप्रोफेशनल, यू डोंट ऐड इट इन स्लाइड्स, टाइनी फॉन्ट्स हैं, पैराग्राफ दिया हुआ है, राइट। और इसी तरीके से जो आपके लेफ्ट वाली साइड है, बहुत कम टेक्स्ट, फिगर बहुत अच्छी, कलर्स बहुत अच्छे, फॉन्ट वेरी क्लियर एंड एवरीथिंग इज इन बुलेट्स, ठीक है। और नीचे आप देखो तो जो अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब आप डिफेंस की दे रहे हो, देयर इज अ रूल, 6 बुलेट रूल। एक स्लाइड पे आप अगर टेक्स्ट दे रहे हो, किसी भी किस्म का टेक्स्ट दे रहे हो, योर स्लाइड कैन नॉट एक्सीड 6 बुलेट पॉइंट्स एट मोस्ट, ओके। एंड 6 into 6 का क्या मतलब है? 6 बुलेट पॉइंट्स और उनके अगेंस्ट 6 वर्ड्स। इट कैन बी अ स्मॉल फ्रेज, it can be a small phrase, it can be a small sentence, but it cannot be a paragraph. All right, now coming to the next slide. So अब ये एक टेबल मैंने ऐड किया था इस चीज के लिए कि अक्सर होता यह है कि जब आप थीसिस लिखते हो, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड ऑल, जब आपने प्रेजेंट करना होता है तो आपने उसमें से चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके प्रेजेंटेशन में डालनी है। वो जो गोल्डन रूल वाली स्लाइड थी, हेडिंग्स आपकी वही होंगी, बट आपने सारा कंटेंट किधर से लेना है? थीसिस में से लेना है ना, ठीक है। सो आप अपने इंट्रोडक्शन में से क्या लेते हो? व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स, जो हमने कहा था प्रॉब्लम, वो आप कहाँ से लेते हो? अपने इंट्रोडक्शन से। इसी तरीके से जो लिटरेचर से आप क्या उठाते हो? आई टोल्ड यू, हम रिसर्च गैप उठाते हैं लिटरेचर में से, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स की एक स्लाइड डालते हो, उसके बाद मेथड्स की एक स्लाइड डालते हो। ओके, आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स, methodology is such a turn off if it exceeds more than 2 slides, right? कई दफा आई हैव हर्ड सच प्रेजेंटेशंस जहाँ पे क्या होता है कि बच्चे जब शुरू होते हैं तो उनका स्टॉप का बटन नहीं दबता मेथोडोलॉजी पे, हमने फिर ये किया, हमने फिर ये किया, और हर स्टेप को एक स्लाइड दी हुई है, ठीक है। वो होते 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 आई थिंक इट वाज द लास्ट ईयर व्हेन आई अटेंडेड वन ऑफ द डिफेंस, जहाँ पे इट वाज अ वेरी लॉन्ग 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 मेथोडोलॉजी, और फिर 25 स्लाइडें तो सिर्फ मेथोडोलॉजी की थी। एंड उस स्टेज पे आके वो पॉइंट आ जाता है कि आप मेंटली ऑफ हो जाते हो एंड यू कैन नॉट कनेक्ट विद दैट, ठीक है। ऑडियंस या एग्जामिनर का भी एक थ्रेशोल्ड है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें अवॉइड करनी चाहिए। आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि आपकी मेथोडोलॉजी की मिनिमम 1 स्लाइड हो या मैक्सिमम आपने करनी है 2 स्लाइड्स हो, एंड मेथोडोलॉजी शुड नेवर बी इन अ टेक्सचुअल फॉर्म। मेथोडोलॉजी, mark my words, methodology should always be a flow chart, always a flow chart. पहला स्टेप ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये हमारे रिजल्ट्स आ गए, बस। इससे ऊपर तो आपकी मेथोडोलॉजी होती नहीं है। बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं 10 माइक्रोलीटर ये लिया, नो 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 नो, प्रोटोकॉल इज अ डिफरेंट थिंग, मेथोडोलॉजी इज अ डिफरेंट थिंग। डिफेंस वाले दिन आप प्रोटोकॉल नहीं समझाते हो किसी को कि मैंने ऐसे किया, फिर मैंने ऐसे किया, फिर मैंने ऐसे किया, नो, यू जस्ट टेल देम मैंने डीएनए एक्सट्रैक्शन की। बाज बच्चे बताने लगते हैं देन आई यूज फिनोल क्लोरोफॉर्म मेथड फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन। आई ऑलवेज से व्हाई सो एक्स्ट्रा? आप ये भी तो कह सकते हो आई परफॉर्म्ड डीएनए एक्सट्रैक्शन, फुल स्टॉप। फिनोल क्लोरोफॉर्म तब बताओ, लीव सम रूम फॉर द एग्जामिनर टू आस्क क्वेश्चन। फिनोल क्लोरोफॉर्म से अगर डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है या किट से किया है, लेट द एग्जामिनर आस्क। कुछ चीजें आप क्वेश्चन आंसर के लिए भी छोड़ा करो। जब आप सब कुछ खुद बता देते हो तो एग्जामिनर के पास कोई चॉइस नहीं रहती बट टू आस्क डिफिकल्ट स्टफ। इसलिए आप लोगों ने अपने लिए आसानी खुद पैदा करनी होती है, ठीक है। आपने अगर कोई मेथड यूज किया तो कोई स्टेप परफॉर्म मेथोडोलॉजी थी आपकी, आपने कहा मैंने सैंपल कलेक्ट किया, ओके, कैसे कलेक्ट किया? लेट द एग्जामिनर आस्क। आपको वो बात पता है बट आप शुरू में ही सब ना बताओ, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रिक। आप जब भी बताओ टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन दो, एक्सप्लेन मत करो। व्हाई?
ताकि एक्सप्लेनेशन जो आपको पता है वो आपका सवाल बन के आपके सामने आए एंड यू वुड हैव एन आंसर टू दैट सर्टेन. ओके, सो दिस इज अबाउट इट. और नेक्स्ट अब हम चलते हैं, चलो जी, अब हमारे पास ग्राफ्स. ये मैंने एक फिगर के लिए भी डाला था कि वो तो स्लाइड्स थी कि स्लाइड अच्छी बुरी क्या है. अब आप लोग जरा ये भी जज करो. Why math? Why for what, Zainab? Zainab Nadeem, you wrote why math. All right, all right, all right. All right. अब आपके पास ये दो ग्राफ्स हैं, एक राइट वाला. ओके, यस. मेथडोलॉजी, मैं फिर एम्फेसाइज करूंगी इस चीज पे कि मेथडोलॉजी में कभी भी एक दो से ऊपर स्लाइड्स मत डाल. सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको पता है आपका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स स्टडी के, रिसर्च गैप कपल्ड विद ऑब्जेक्टिव्स. ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. शुरू में आप पिच सेट कर देते हो, उसके बाद वी आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स. क्या आया फिर, जब इन्होंने ऐसे किया तो क्या हुआ होगा, राइट? उसमें इंटरेस्टेड है. जब वो रिजल्ट्स आते हैं, सो यू मस्ट नॉट पुट द एग्जामिनर इन अ पोजीशन जहां उसको रिजल्ट में भी इंटरेस्ट ना ले. और ये कब होता है? जब आप मेथडोलॉजी इतनी लंबी बयान करते हैं, राइट? उसके बाद एग्जामिनर की बस हो जाती है. सही है. और फिर आप जब रिजल्ट्स बताना भी चाह रहे होते हो, कई दफा आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोग मेथडोलॉजी में इतना टाइम ले लेते हो, एग्जामिनर कहते हैं इसको स्किप करें, ये स्लाइड हटा दें, स्किप करें. सी, जब आप स्टूडेंट होते हो और जब आपने इतना काम किया होता है, इट इज स्टूडेंट साइकी, यू वांट टू टेल देम एवरीथिंग दैट यू हैव डन. इज इट सो और नॉट? आपने अगर काम किया अपना प्रोजेक्ट का, क्योंकि आपने उस पर मेहनत की होती है, अगर दिल कर रहा होता है यार मैं ये भी बता दूं, मैं ये भी बता दूं, मैं ये भी बताऊं, राइट? उस वक्त सबसे बुरी चीज पता क्या लगती है? जब आपको एग्जामिनर कहता है स्लाइड आगे करें, ये छोड़ दें, आगे जाएं, आगे जाएं, सीधा रिजल्ट पे जाएं. देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे ऐसा होता है. और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने पहली स्लाइड्स में उसकी एनर्जी ड्रेन कर दी होती है, तो वो आपकी स्लाइड स्किप कराने लग जाते हैं. एंड दिस इज समथिंग यू डोंट रियली वांट टू हैपन. ठीक है? और ये कैसे पॉसिबल है कि शुरू में बिल्कुल ब्रीफ 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 करके चले, थोड़ी थोड़ी बात करें, थोड़ी सी स्लाइड्स रखें, ताकि जब रिजल्ट आए तो एग्जामिनर्स आर मोस्ट हाइप्ड अप टू सी द रिजल्ट्स. ठीक है? सो ओके, फर्स्ट वन. फर्स्ट अब किसको कह रहे हो सादिया, राइट और लेफ्ट? रोमेसा ने कहा कि राइट वाला ठीक है. सादिया ने कहा फर्स्ट वन. सादिया फर्स्ट कौन सा है, राइट या लेफ्ट? स्टूडेंट्स, आज ठंडे हुए हुए हो आप लोग सारे भाई, कल तो बहुत एक्टिव थे सारे बच्चे. राइट वन, राइट वन, राइट वन. साजिदा, yes. Umayma, yes. The one with blue and red tiles. The one with blue and red tiles. Is it a good one, Aruj, or a bad one? Too much figures on left side. Right one, left. Okay. Nankiani said left one. Why? आपको वो क्यों प्यारा लग रहा है? Why do you think is that one better? जिनको लेफ्ट बेहतर लग रहा है, why? Okay. So what are the problems? मैम, Yes, yes, yes. ओके मैम, जो हमारे पास राइट वन है जिसमें ग्रीन और ब्लू ब्लॉक है, इसमें -2x इंक्रीज लिखा हुआ है. हमारे पास यहाँ पे इस तरह से डाटा नहीं आता. नंबर 2, हमारे पास जो राइट साइड पे जो रिलेटिव एक्सप्रेशन, फोल्ड चेंजेस और ये सब लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक्यूरेट चीज़ें नहीं है. मूविंग टू द फर्स्ट वन, रेड एंड ब्लू टाइल्स, इसमें हमारे पास जो मोस्टली सजेशंस होते हैं
वो ग्राफ बनाते हुए हमारे पास ये लाइंस रिमूव कर देते हैं, जो लाइंस यहाँ पे लगी हैं। प्लस हमारे पास जो वाई एक्सिस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, अननेसेसरी हैं। मतलब हमारे पास में गैप ज़्यादा आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अननेसेसरी वैल्यूज़ हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन लेवल का आगे यूनिट वगैरह नहीं लिखा हुआ, और हमारे जो डाटा है वो क्लैरिफाई नहीं कर रहा। दोनों ग्राफ्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। यू आर राइट, राइट वाले में ना ये जो 2x इंक्रीज लिखा हुआ, वी डोंट यूजुअली राइट इट दैट वे, बट बाकी चीजें आर रियली ओके इन द राइट वे। जो लेफ्ट वाला है, एक बात अभी हबीबा आपने की, रिलेटिव एक्सप्रेशन फोल्ड चेंज, उन्होंने जो y एक्सिस लिखा हुआ है इट्स वेरी राइट, वेयर डू यू फाइंड द प्रॉब्लम इन दैट वन? मैम कैन यू रिपीट इट? हाँ, आप कह रहे हो ना कि जो y एक्सिस है वो भी कुछ सही नहीं है, तो y एक्सिस में आपको क्या प्रॉब्लम नजर मैम आया राइट वाले? मैम फॉर मी, मैंने जितना पढ़ा हुआ इसमें ये है कि लेबल्स जो हैं आपके कंसाइज होने चाहिए। यहाँ पे रिलेटिव एक्सप्रेशन और बहुत लंबा आ रहा है, आगे ब्रैकेट में फोल्ड चेंज भी आ रहा है, सो दैट्स व्हाई। ओके, जब आप रिलेटिव एक्सप्रेशन के ग्राफ्स आप कभी भी देखोगे, दे ऑलवेज मेंशन दिस इज अ साइंटिफिक वे ऑफ mentioning relative expression and fold change. You must give fold change is a unit. कल जैसे अभी आप लोग को याद होगा कि हमने एक जगह पे बात की थी कि हमने कोई बात की हुई थी कि कॉन्सेंट्रेशन ये है, हमने आगे यूनिट ही नहीं दिए हुए थे, ठीक है? तो वो हमने क्या कहा था कि दैट्स एन एरर। अगर यहाँ पे हम रिलेटिव एक्सप्रेशन लिखते हैं और ये ना बताएं कि वो लॉग फोल्ड है, फोल्ड चेंज है या क्या है, ठीक है, सो दैट वुड बी अ मिस्टेक इंस्टेड। तो ये जो y एक्सिस पे जब भी आप रिलेटिव एक्सप्रेशन के जब भी ग्राफ्स बनाते हो, तो जो y एक्सिस पे रिलेटिव एक्सप्रेशन और ब्रैकेट में फोल्ड चेंज लिखा जाता है, ठीक है? एक ये चीज। दूसरी चीज कि ये जो 2x इंक्रीज वाली बात की है, दैट्स नॉट अ गुड वे ऑफ लाइक इंडिकेटिंग द एक्सप्रेशन चेंज, ठीक है? इस तरह से आप कभी भी नहीं लिखते हो कि 2x, ये बहुत ज्यादा इनफॉर्मल लग रहा है कि जैसे ऐसे प्लस माइनस करके आपने ऊपर लिख दिया हुआ है, ठीक है? सो अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो बेटर ग्राफ है वो राइट वाला है। जिन जिन ने राइट कहा है, यस ज़ैनब, यू आर राइट फॉर द सेकंड वन, यस। तो जो जिन जिन ने कहा है कि राइट वाला बेटर है, सी वी आर नॉट, ये परफेक्ट नहीं है, बिकॉज हबीबा ने जो 2x इंक्रीज वाली बात की है दैट्स वेरी वैलिड, ये परफेक्ट नहीं है, बट दैट्स स्टिल अ बेटर वन कंपेयर टू द लेफ्ट वन। लेफ्ट वाले में ये जो इतनी वैल्यूज दी हुई है, अभी किसी ने इधर ऊपर, अनस ने शायद बोला था कि बहुत सारी फिगर्स हैं लेफ्ट में, तो दैट्स अ वेरी बिग मिस्टेक कि आप इस तरह इतनी ज्यादा वैल्यूज नहीं दे सकते। यू ऑलवेज चूज अ रेंज। जब आप ग्राफ बना रहे होते हो तो आप हमेशा रेंज को ही चूज करते हो। आपको पता है कि जब आपकी वैल्यूज फर्स्ट करो 0 से 5 के बीच में है, दूसरे में भी देखो तो 0 से 5 के बीच में ही है, लेकिन उन्होंने हर चीज 0.05, 0.5, 0.5 उसका भी इंटरवल बनाया हुआ है, विच इज नॉट राइट, ठीक है? तो जो राइट वाला ग्राफ है, एक और बात यहाँ पे आप लोग शायद देख रहे होगे, ओके ज़ैनब, लेट मी फिनिश, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे राइट पे आप देख रहे होगे कि आपके राइट वाले ग्राफ में आपको एरर बार दिख रहे हैं कि नहीं? आप लोगों ने स्टैट्स का कोई मॉड्यूल लिया है इस सारे प्रोसेस में? हबीबा, हैव दे टेकन एनी स्टैट्स मॉड्यूल? नो मैम, स्टैट्स का हमारे पास इस तरह से नहीं था, लेकिन सर यासर ने कवर अप की थी कुछ चीजें थोड़ी बहुत। Okay, so students, can you see the error bars here in the right one? ये जो लंबे लंबे बार्स हैं आपकी, एक तो आपकी पीक है ना ग्राफ की, उसके ऊपर इस तरह ये लाइंस लगी हुई हैं एक एक, ठीक है? दीज आर कॉल्ड एरर बार्स। जब आप ग्राफ बनाते हो तो आपका ग्राफ हमेशा एरर बार के साथ होना चाहिए। ये एरर बार को देख के पता चलता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी थी डेटा में, ठीक है? अगर आप राइट वाले में देखो तो इसमें एरर बार्स लगी हुई हैं, लेफ्ट वाले में देखो कोई एरर बार नहीं है, ठीक है? तो एरर बार से आपको बाज़ औक़ात, अब अगर आपने पी वैल्यू नहीं भी दी हुई तो आपको एरर बार से पता चल जाता है कि वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी कि नहीं होगी, ठीक है? सो राइट वन इज अ गुड ग्राफ फॉर ऑल द राइट रीजंस, बट जो लेफ्ट वन है इट्स नॉट अ गुड वन। एंड ज़ैनब नदीम, यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
एक और चीज ऐड करनी थी, वो ये थी कि जो फर्स्ट वाला है वो इसलिए भी एक्यूरेट नहीं लग रहा क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, ब्लू बार के नीचे नॉर्मल लिखा है और रेड के नीचे ट्यूमर लिखा है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक की बॉक्स बनाया हुआ है कि ब्लू इज फॉर नॉर्मल एंड रेड इज फॉर ट्यूमर, सो इट्स लाइक सो मच इंफॉर्मेशन is putting out there which is not even necessary. Very nice, very nice. Thank you for pointing out. Yes, ये बहुत सही बात की, it's duplication of the same facts. आप सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हो नॉर्मल ट्यूमर की और उसके बाद आपने उस बॉक्स में अलग से भी लिखा हुआ है. तो यस, ब्रिलियंट ज़ैनब. I'm glad that you pointed it out. All right, and then repeat this point. Which point? Bars. Okay. तो सादिया, I was saying कि ये जो आपके पास एक तो ग्राफ की पीक्स है जो ब्लू और ग्रीन कलर की है, ऐसा ही है, लेकिन आपको हर पीक के ऊपर एक ये ब्लैक वाली लाइन नजर आ रही है. इस पे भी राइट वाले की बात मैं कर रही हूँ. These are error bars. ठीक है. तो जब कभी भी आप ग्राफ बनाते हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो, आपके error bars must be part of your graphical representation. ठीक है. सो ये वाली चीज भी एक पॉइंट है, मेजर पॉइंट है, जो कि इसमें फर्क है. राइट. ओके. और यस, लाइक ज़ैनब पॉइंटेड आउट कि इन्होंने नॉर्मल और ट्यूमर पहले मेंशन किया हुआ है, फिर भी राइट में बॉक्स दिया हुआ है. एक और जगह ऐसी डेटा डुप्लीकेशन आपको नजर आ रही होगी. व्हाट इज दैट? कैन यू स्पॉट ज़ैनब एंड एवरीबॉडी एल्स, एनी वन ऑफ यू? क्या आपको लग रहा हो कि वो तो वैसे भी पता चल रहा था, इन्होंने क्यों लिख दिया ऐसे? देखो, जहाँ पे आपके ग्राफ जा रहे हैं वो हमें तो वैसे भी वाई एक्सेस पे हमें पता चल ही रहा है कि वो 2 पे है या 4.6 पे है या क्या है. स्टिल दे रोट डाउन द नंबर्स ऑन द हेड. ऐसा है कि नहीं है? अब इन्होंने लिखा हुआ है 4.6. क्या आप लोग को पीक देख के नहीं अंदाजा हो रहा कि वो 4.5 से ऊपर है? इसी तरीके से नॉर्मल पे लिखा हुआ है 2.13. आपको पीक देख के पता चल रहा है कि वाई एक्सेस पे वो 2 पे है. राइट. सो देयर आर 2 पॉइंट्स जहां पे इस पे इन्होंने डेटा डुप्लीकेशन की हुई है और डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, व्हिच इज नॉट नीडेड. ठीक है. सो ब्रिलियंट गाइस, देयर यू गो. ठीक हो गया. सो ये वो चीजें हैं जो आप लोग बता चुके हो, आप लोग उससे भी ज्यादा बता चुके हो. ठीक है. तो ज्यादा बेटर आप लोग ने अंडरस्टैंड किया इस चीज को कि इसमें क्या प्रॉब्लम है. सो आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने अच्छी इंटरप्रेट किया इस ग्राफ को, सारे उसमें से इश्यूज निकाले हैं. एक और बात, यहाँ पे ना इधर ये वाली जो पिक्चर ऐड की है मैंने, इसमें आप देखो एग्जाम्पल. मैंने आपको कहा था कि इनफॉर्मली ही बात करते हैं ना साइंस में जैसे. तो इधर आप देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2.1 टू 4.6. ठीक है. अब ये तरीका क्या है, ये पूरा लेमैन लैंग्वेज है. एक्सप्रेशन इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस. लेकिन अब राइट साइड पे देखो, आपको एक और वे बताया गया है कि हमारी फाइंडिंग ये थी कि जीन एक्सप्रेशन नियरली डबल्ड इन ट्यूमर टिश्यूज, suggesting it's possible oncogenic role. Like I mentioned, you always use the word possible, potential, plausible, all these words, right? Because you cannot make a claim just by doing one experiment in science. ठीक है. So this is the right way. आप साइंटिफिकली चीजों को कम्युनिकेट करो कि हमारी फाइंडिंग्स ने ये बताया कि एक्सप्रेशन में ये चेंज आया, ना कि ये 2.1 से 4.6 हो गया. Alright? Okay. Now coming towards defense psychology. ये चीजें हम पहले भी बहुत दफा, वैसे मैंने कल भी डिस्कस की हैं, आज दोबारा भी हम लोग एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं. आई कांटेक्ट की मैंने बात की थी कल भी कि यू मस्ट मेंटेन अ गुड आई कांटेक्ट विद ऑडियंस. एंड आई कांटेक्ट में मैंने कल आप लोग को एक बात बताई थी कि आई कांटेक्ट एक बंदे से ही करते रहना कि पूरा टाइम उसको ही देखते रहो. ठीक है. यू मस्ट चेंज the person you are making an eye contact with among the audiences. For 1 minute, it can be an external examiner. The next, it can be somebody sitting next to him or her, right? So, आप लोगों ने eye contact, it keeps on shuffling from one person to another. Because आप जब एक को देख के करते हो, that means कि आप comfortable हो उस बंदे को present करने में, और बाकियों को you are not paying any heed to the other people sitting around. ठीक है?
So maintaining eye contact, pause. This is very important. बाजू का तो आप लोग शुरू होते हो बच्चे, आप लोगों से मुराद मेरा बच्चे है कि स्टूडेंट्स, राइट? स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कोई बीच में ब्रेक नहीं आती और अन्य एंड तक पहुंच जाते हैं, ठीक है? सो उससे क्या होता है कि आप खुद भी एग्जॉस्ट हो जाते हो बहुत जल्दी, ठीक है? और सेकेंडली ये कि जब आप इतने फ्लो में सारा कुछ दिखा देते हो तो हम कुछ ग्रास्प भी नहीं कर पाते, राइट? सो इट्स रियली गुड टू टेक अ पॉज, इट्स रियली गुड to smile in between your slides, ठीक है? Smile, और smile का मतलब ये होता है कि composed smile देना, right? That's just a way of breaking ice with the audiences and trying to connect with them like socially, ठीक है? तो वो भी जरूरी होता है, pause लेना भी जरूरी होता है, slow speaking is the key. कई दफा कुछ टीचर्स होते हैं वो भी इतना फास्ट बोलते हैं, हाँ, तो बच्चों को उनकी भी समझ नहीं आती। आप लोग ने अपने लाइफ स्पैन में इतने टीचर से पढ़ा होगा, आप लोग के भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे गुजरे होंगे जो इतनी स्पीड में बोलते हैं। बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि फलाना टीचर इतना तेज बताता है, बोलता है, हमें समझ नहीं आती, हम फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है? तो ये जो स्लो स्पीकिंग है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक्स फॉर डिफेंस, बिकॉज आप जब स्लो बोलते हो, स्लो स्पीकिंग क्यों जरूरी होती है? स्लो स्पीकिंग में पता क्या होता है, जब आप आहिस्ता बोलते हो तो आप करते क्या हो कि एक तो ये कि आप उस वक्त खुद कॉम्प्रिहेंड कर रहे होते हो, ठीक है? यस, एंड दैट्स ब्रिलियंट, यू आर थिंकिंग एट द सेम टाइम। उस वक्त आप जो बोल रहे होते हो आप वो भी कॉम्प्रिहेंड कर रहे होते हो, और सेकेंडली जब आप आहिस्ता बोलते हो तो यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट words or the next sentence that you'll be uttering, ठीक है? तो इसलिए आहिस्ता बोलना बहुत जरूरी है ताकि सोच सको, बोल सको और तैयारी कर सको। आपको पता है कि ह्यूमन माइंड इज वेरी शार्प एंड सो ब्रिलियंट कि आप उस एक छोटे से पॉज में इतना कुछ एट द सेम टाइम कर रहे होते हो, राइट? लेकिन जो बंदा तेज बोलता है ना, कुछ भी नहीं कर पाता। I have seen this in my lectures as well. जो मेरी पर्सनल खुद जो मैं ऐसे टॉक्स वगैरह देती हूँ या लेक्चर्स देती हूँ, जैसे मैं ज्यादा स्पीड में बोल रही होती हूँ, आई फील कि आपके वर्ड्स ऊपर नीचे होने लग जाते हैं, यू स्टार्ट अटरिंग रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन एट टाइम्स बिकॉज आप इतनी स्पीड में जा रहे होते हो या क्या। सो इट्स ऑलवेज गुड टू टेक पॉजेस, इट्स ऑलवेज गुड टू स्माइल, टू बिल्ड अ सोशल कनेक्ट एट द ड्यूरिंग योर डिफेंस प्रेजेंटेशन, ठीक है? और उसके बाद एक और बात, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, राइट? बॉडी लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। वन, यू नीड टू स्टैंड स्ट्रेट, ठीक है? बाजू का आप ऐसे होते हो ढीले, कभी किस तरीके से, कभी किस तरीके से, वो बॉडी पोस्चर आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करता है। कैजुअल बिहेवियर हो सकता है कि आपका स्टाइल ही ये हो कि आप खड़े ही ऐसे होते हो, राइट? बट देखने वाले को क्या लगता है, नॉन सीरियस एटीट्यूड है, बहुत इनफॉर्मल वे में दे रहा है प्रेजेंटेशन, ठीक है? इसीलिए ये बिल्कुल सीधा खड़ा भी नहीं हो रहा, शायद ये एग्जामिनर्स को इजी ले रहा है बिकॉज ही और शी इज नॉट केयरफुल कि मैं किस तरह से प्रॉपर खड़ा होके प्रोफेशनली अपनी प्रेजेंटेशन दूं। वन मोर थिंग, बॉडी लैंग्वेज का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपके जो जेस्चर्स हैं दे आर ऑल ओवर द प्लेस। ये बात आप मेरी समझ रहे हो? आपके बॉडी लैंग्वेज से मुराद आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी हैं। समटाइम्स यू ट्राई टू कम्युनिकेट थ्रू योर फेशियल एक्सप्रेशंस, sometimes you try to communicate through your body language, sometimes you try to communicate certain things through your hands, right? But जब मैंने ये बात की है, breathe, think, win, yes, Anas, brilliant. जब मैंने ये बात करी आपको कि all over the place नहीं होने चाहिए, तो उसका मतलब ये है, like me, I'm in a habit of using my hands while explaining things, right? But ये हैंड मूवमेंट इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होनी चाहिए कि पूरा लेक्चर में होता ही यही है, राइट? सो बिकॉज जब ये कोई भी जेस्चर आपका बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने लग जाता है और वो आपके दूसरे को अंडरस्टैंड करने में हेल्प नहीं करता, वो क्या हो जाता है, इट रादर बिकम्स अ डिस्ट्रैक्शन फॉर द ऑडियंस, ठीक है? बिकॉज देयर कम्स अ टाइम कि आप वो जेस्चर ही नोट करते रह जाते हो, उसकी बात तो समझ आती ही नहीं है, right? So your body language, your movement should not be all over the place.
keep them in your control. Okay? और क्या नहीं करना, स्लाइड रीड नहीं करनी, खबरनामा नहीं पढ़ना, फर्श पे नहीं देखना. बाज़ औक़ात बच्चे दीवारों पे देखने लग जाते हैं, फ्लोर पे देखने लग जाते हैं, because they find it hard to make an eye contact. This is not a good symbol, right? Rushing, स्पीड में नहीं जाना, ठीक है. And yes, filler words. Filler words क्या होते हैं? इस तरह करके बहुत ज्यादा हम लोग बोलते हैं. एक बात मैं इधर मेंशन करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी प्रेजेंटेशन ये हो फ्लॉलेस. ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी हूम करें ही ना, कभी आप फिलर वर्ड का इस्तेमाल ना करें. वी आर ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे. once or twice, thrice, 4 times, maybe it's okay, right? जब आप सेक्शन में ट्रांजिशन कर रहे हो, न्यू सेक्शन की तरफ जा रहे हो, it's good to use a word, right? वो क्या होता है, जैसे गाड़ी गियर चेंज करती है, ठीक है, तो उस वक्त एक स्लाइड सा झटका आता है, राइट? तो ये वो वाली चीज है कि आप जैसे ट्रांजिशन ले रहे हो फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर, तो उसमें आप फिलर वर्ड्स यूज कर सकते हो एक आध. But there are so many instances where I have seen students in after every sentence there is then next sentence then next sentence. तो ये चीज जो है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, राइट? फिलर वर्ड्स का इस्तेमाल आप सेक्शन ट्रांजिशनिंग के दौरान एक आध दफा करते हो, दैट्स फाइन. बट अगर बार बार एक एक लाइन के बाजू का तो एक जुमले में 3 दफा होती है, राइट? सो ये चीज कैसे ठीक होती है? अब सवाल ये है, ये प्रैक्टिस से, बोलने की प्रैक्टिस, ठीक है, बोलने की बार बार प्रैक्टिस करो कि मैं ये जुमला बोलूं था तो कैसे बोलूं, मैं इसमें बहुत दफा कर रहा हूं. एंड ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस डज मेक अ डिफरेंस. प्रैक्टिस डज मेक अ डिफरेंस. जब आप 10 दफा एक जुमला दोहराते हो तो वो आपका वाकई सही हो जाता है, ठीक है. सो प्रैक्टिस हर चीज को बेहतर कर देती है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. Okay. Yes, handling difficult questions. Listen. Be a good listener, guys. हम कहते हैं एक चीज होती है बात बराए बात, जवाब बराए जवाब. अगर किसी ने कोई बात की है, आपको होता है मैंने भी बोलना ही है कुछ, ठीक है. जब आप उस चीज में होते हो ना कि मैंने जवाब देना है, मैंने आर्ग्यू करना ही करना है, ठीक है, तब आप क्या करते हो, आप किसी का सवाल सुनते नहीं. तो क्वेश्चन आंसर हैंडल करने का सबसे पहला स्टेप क्या? लिसन केयरफुली. यू मस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग जो आपको आती है उस मोमेंट के लिए. यू मस्ट फॉरगेट कि मैं क्या कर रहा था क्या नहीं. अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है तो टेक अ पॉज, लिसन टू द एग्जामिनर, ठीक है. उसके बाद उसका सवाल अंडरस्टैंड करो. आप अगर खामोशी से सुनोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है. उसके बाद फिर आप जवाब कंपोज करो. जब वो सवाल कर रहे होते हैं ना, आधे से ज्यादा टाइम अगर आप खामोशी से सुनो तो एट द सेम टाइम आप अपना आंसर भी प्रोसेस कर रहे होते हैं. लेकिन अगर आपको ये जल्दी है ना कि आप एग्जामिनर को ही टोक के शुरू हो जाओगे, तब तो ना आंसर आप सही कर पाते हो, ठीक है, और ना ही आप प्रॉपर एक अच्छे लिसनर बन पाते हो, राइट. सो आप लोग को अगर याद हो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड माय कम्युनिकेशन स्किल्स लेक्चर. आई मेंशन्ड देयर कि बी अ गुड लिसनर. हाँ ना, ऐसी बात आई थिंक कुछ बच्चे शायद होंगे जो अटेंड किया हो. तो लिसनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. आंसर देने के बाद रुकना भी है, और रुक के ये मेक श्योर करना है कि एग्जामिनर इज सेटिस्फाइड विद योर क्वेश्चन. वो कैसे होगा? ईदर दे विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और they will ask you to okay keep presenting, go ahead, ठीक है. So it's not like मैंने तो जवाब दे दिया, उन्हें समझ आई है या नहीं, मैं तो आगे बढ़ता चला जाऊँ. No, right? You need to stop and make sure that the examiner is satisfied with the question. Okay? Panic नहीं करना, तुक्के नहीं मारने, never make a wild guess. कल मैंने एक बात मेंशन करते करते रुक गई थी, बिकॉज आज की हमारी टॉक थी. आई थॉट कि मैं आज बताऊंगी आपको. आपने जो काम किया होता है ना, वो बहुत, वो क्या कहते हैं ना कि अगर एक इतना बड़ा समंदर है तो उसमें एक कतरा पानी का, वो आपका प्रोजेक्ट होता है. साइंस इज सो वास्ट, राइट. आप जितना मर्जी काम कर लो फिर भी आपने कुछ भी नहीं किया होता.
इतना बड़ा है साइंस, साइंस बहुत बड़ी है। तो होता क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो काम आप लेके आए हो ना, आप तो उसके वही बन जाओ कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पूछ लो, मैं तो इंसाइक्लोपीडिया हूँ इसका। ठीक है, ये सोच के साथ आपने कभी डिफेंस में नहीं जाना। डिफेंस में आपको इस काबिल होना चाहिए कि जो आप स्लाइड में दिखा रहे हो या जो आपने अपने थीसिस में किया आपको वो पता हो। जो पार्ट आपके थीसिस में नहीं था और अगर वो आपको नहीं आता तो जस्ट से, तुक्का नहीं मारना, वाइल्ड गैसेस नहीं थ्रो करने, मुझे लगता है ऐसा होता होगा, मुझे लगता है ऐसा होता होगा, नहीं नहीं, जस्ट टेल देम दिस साउंड्स a very interesting question. Unfortunately, we did not have enough time to explore this side, this aspect of this topic. So, but we can add it in our future research, right? कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट हमने एक्सप्लोर नहीं किया, बट हम इसको फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, आपने वैलिडेट किया एग्जामिनर के क्वेश्चन को भी कि यस इट वाज अ वेरी साउंड क्वेश्चन, लेकिन आपने ये भी बता दिया कि आई डोंट नो द आंसर टू दैट। ये नहीं होता सॉरी आई डोंट नो द आंसर, ये भी बात नहीं सही लगती। ठीक है, वहां पे सिर्फ एक कह तो आप फिर भी यही रहे हो कि मुझे नहीं आता, बट देयर इज अ वे टू टेल दैट। ओके, तो आप लोगों से डिफेंस में अगर कोई ऐसा पूछा जाए सवाल जो आपको लगता है कि वो नहीं आता मुझे, तो आप लोग कह सकते हो कि सर और मैम ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट हमारे थीसिस में ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, बट आई होप कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में ये हम चीज एक्सप्लोर कर सकें, उसको स्टडी कर सकें। दैट्स अबाउट इट। ठीक है, so this is major strategy while answering your question, and specifically those questions that you don't have an answer to. Okay, all right. Do's and don'ts ये कल भी मैंने ऐड किए थे, I'm not gonna spend time on these today. ये कल भी मैंने ऐड किए थे, ये प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, हर फिगर को आपने एक्सप्लेन करना है। एंड यस, 10 मिनट डिफेंस प्रिपरेशन फॉर्मूला। अगर कल मैंने आपसे कहा था कि आपका सुपरवाइजर कह रहा है कि 5 मिनट है आपके पास और आप डिफेंस प्रेजेंटेशन वो थीसिस सबमिट करवाने लगे हो, आप क्या चीजें देखोगे, रिमेंबर? ठीक है, ये वैसा ही कुछ एक सिनेरियो है कि आपके पास एक दिन है, कल आपकी डिफेंस है, वो क्या चीजें हैं जो आप आज करके करोगे लास्ट में, ताकि कल मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी सी हो जाए। क्या चीजें चेक करोगे? नंबर 1, अपने ऑब्जेक्टिव्स देख लो, मेथोडोलॉजी देख लो, स्टैट्स देखो, ये एरर बार वगैरह वाली चीजें ये स्टैट्स होती है कि मैंने ठीक की भी है ना। फिगर्स देख लो, अब कैसे वो ग्राफ कितना गलत था लेफ्ट वाला, वैसा ग्राफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओपनिंग प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओपनिंग, कई बच्चे होते हैं वो रीड करते हैं ओपनिंग को, कि हमारी सबसे जो तबाही किस्म की इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं बच्चे वो अपनी ओपनिंग में करते हैं, ऐसा ही है ना, क्योंकि वो कभी तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रीड ही कर रहे होते हैं। ठीक है, या कभी अगर बोलते भी हैं तो वो उसकी तैयारी करके आते हैं, राइट। एक तो ये कि आपने रीडिंग या कोई मटेरियल से हेल्प नहीं लेनी, जब ओपन करना है आपने एक काम पे महीने लगा दिया, आप उसको ओपन भी नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स कि कुछ तो कमी रह गई है ना। तो आपके लिए एक पहला, वो कहते हैं ना कि पहला इंप्रेशन ही आखिरी होता है। ठीक है, तो आपको अब और पूरी प्रेजेंटेशन की कोई प्रैक्टिस करो ना करो, एक बहुत जरूरी चीज है कि आपने ओपनिंग कैसे करनी है। आपने प्रेजेंटेशन जब आपने शुरू करनी है तो आपने पहले 2-3 मिनट क्या बोल के शुरू करनी है, आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी अ वेरी साउंड एंड सटल इंग्लिश। मिक्स नहीं होनी चाहिए, वो जो आप लोग चाहते हो इंग्लिश उर्दू मिक्स कर लो, तो वो मिक्स नहीं होना चाहिए, राइट। इट शुड बी अ वेरी साउंड इंग्लिश। आप सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, तो इसलिए एक 4-5 लाइनों का एक अच्छा सा ओपनिंग होना चाहिए, सेंटेंसेस होने चाहिए, ओपनिंग पैराग्राफ होना चाहिए, ताकि सुन के लगे कि यार ओ समथिंग एक्साइटिंग इज कमिंग अप। ठीक है, और उसके बाद मोस्ट पोटेंशियल क्वेश्चंस, लाइकली क्वेश्चंस इधर जस्ट लिखा हुआ है, रेस है कि सवालात वही होते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है, अक्सर एग्जामिनर पूछते हैं आपकी स्टडी की वीकनेस क्या है, लिमिटेशन क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है, आप ये कंक्लूड कैसे कर लिया, ये ऑब्जेक्टिव क्यों रखे,
या ये ऑब्जेक्टिव ठीक नहीं था, इस ऑब्जेक्टिव के लिए मेथड क्या यूज किया, सवाल फिर वैसे के वही होते हैं, राइट। तो आप लोग क्या करो कि ऐसे जो सवाल है ना, जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो हर एक से पूछे जा रहे होते हैं, वो प्रिपेयर करके जाओ। और अगर 5 सवाल होंगे तो 5 में से 3 वो कॉमन होंगे ही होंगे, तो 1-2 सवाल ही ओके आते हैं बीच में, ठीक है। एंड उसके बाद स्लीप वेल, एंड यस दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड दिस इज समथिंग आई रियली प्रैक्टिस एवरी टाइम। अब तो खैर आई एम नो मोर अ स्टूडेंट, बट ये कि जब भी अगले दिन आपकी कोई टॉक है या कुछ है, पिछले दिन नींद बहुत अच्छे से पूरी करो, बिकॉज जब आपकी ब्रोकन इंटरप्टेड स्लीप से आप आ रहे होते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे, आपके फेस पे, आपके बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है, वो दिख रहा होता है कि इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, ठीक है। और फिर जो पहले ढीला दिख रहा है उसको एग्जामिनर और पकड़ लेते हैं, सही है ना। तो इस वजह से नींद पूरी करके जाते हैं। आई रिमेम्बर वन ऑफ माई टीचर्स, ही यूज्ड टू टेल अस व्हेन आई वाज डूइंग माय फॉर्म डे, तो वो हमें उन्हें बताते होते थे। और जब आप स्टूडेंट होते हैं तो कुछ चीजें आपके लिए बिल्कुल नई होती हैं और आप बहुत हैरान भी होते हो कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। जब बड़े होते हो फिर आप कहते हो नहीं, नाउ दैट मेक्स सेंस। तो वो एक हमारे प्रोफेसर थे फार्माकोलॉजी के, तो वो हमेशा कहते होते थे कि मैं तो अपने पेपर से, जैसे अगले दिन मेरा सुबह पेपर होता था, रात को मैं एक 3 घंटे की मूवी देख के सोता था, ठीक है। तो उस टाइम पे हम कहते होते थे कि भाई ये कैसे, मतलब स्टूडेंट है और कैसे ये रात को, हम तो कितने वो एंशियस होते हैं, सुबह हमारा पेपर है और हमने पेपर देना है और सर जो है वो मूवी देख के सो जाते हैं। अभी जब मैं प्रैक्टिकल फील्ड में आई तो स्टूडेंट होते हुए तो नहीं बंदा ऐसे कर सकता इतना ज्यादा, लेकिन ये कि जब ये डिफेंस और प्रेजेंटेशंस, एग्जाम्स में ये करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यू आर टोटली इन द प्रिपरेशन मोड फॉर योर पेपर्स, आप ऐसे नहीं कर सकते। बट डिफेंस ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप बैठ के तैयारियां करो और रात सारी जागते रहो कि मैं ये स्क्रिप्ट तैयार करूँ। नो, ये काम आपने अगर खुद किया हुआ है तो आप खुद बोल सकते हो, आपको सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन और अपनी अंडरस्टैंडिंग लॉजिक अच्छा करना है, राइट। तो डिफेंस वाले टाइम पे अलबत्ता आए, मुझे थोड़ा सा जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई तो आई रियलाइज कि जब आपकी कोई टॉक होती है, कोई डिफेंस होता है या किसी बड़े पोडियम पे आपने बात करनी होती है, तो आप नींद बिल्कुल लाजमी अच्छे से करके जाओ। बिकॉज अगर आप बहुत फ्रेश होके जाते हो ना, ठीक है, तब आपका सब कुछ बहुत अच्छा भी हो जाता है, ठीक है। एंड साउंड स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड साउंड स्लीप डजंट मीन 14 आवर्स ऑफ स्लीप जो कि आजकल जेंजी करती है, लंबी लंबी स्लीप, हाँ 14 घंटे 16 घंटे, so not that sleep, but ये कि 6 to 8 hours is a very good sleep। तो सो के जाओ, सुबह फ्रेश उठ के जाओ, और जो पहले नहीं भी आता था ना वो याद आने लगेगा जब नींद पूरी होगी, ठीक है। तो ओके, आई थिंक वी आर लेफ्ट विद द लास्ट mock viva activity. All right, so this is a very interesting activity. I hope it goes well. तो यहाँ पे क्या है, I have 3 questions in the next slide. Let me show you. ये questions है, question 1, question 2, question 3, right? अब हम किसी एक स्टूडेंट को एग्जामिनर बनाएंगे और किसी एक को बनना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। एग्जामिनर उससे सवाल पूछेगा, ठीक है। एंड आई ऑल्सो वांट टू सी कि आप सवाल किस अंदाज में पूछते हो। इट्स अ रोल प्ले। रोल प्ले आप लोग समझते हो कि एक बंदा कुछ बनने की एक्टिंग करेगा और एक बंदा कुछ बनने की एक्टिंग करेगा, राइट। सो आई दीज आर जस्ट 3 क्वेश्चंस, और हम 3 लोगों को एग्जामिनर बनाएंगे, 3 को इस तरह स्टूडेंट बनाएंगे, ताकि थोड़ा सा पता चले कि आप लोग बात कैसे करते हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आप लोग अगर कोई बच्चा कंफर्टेबल नहीं है अपनी वीडियो शेयर करने पे, तो आई एम नॉट लाइक forcing you guys to open up your videos, बट ये कि आप लोग की आवाज में सुनना चाहूंगी। आई वांट टू लिसन टू हाउ यू आस्क अ क्वेश्चन बीइंग एन एग्जामिनर, और फिर मैं देखना चाहूंगी कि जो दूसरा बच्चा है वो जवाब कैसे दे रहा है, ठीक है। इट नॉट नेसेसरली इट हैज टू बी परफेक्ट, बट ये है कि इतना महीने के इतने मॉड्यूल्स लेने के बाद, ठीक है, अब इतना सा तो बोलना आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने हिंट्स भी लिख दी हैं कि एग्जामिनर क्या सुनना चाह रहा है, ठीक है, तो आप उसमें से बता सकते हो। सो इज देयर एनीवन हु वांट टू volunteer for the first question as an examiner and the other one as a student? टीचर बनूंगी। अरूज, तुम्हारा बचपन का शौक अभी तक नहीं गया? हाँ, मैं टीचर बनूंगी बड़े होकर। ओके, सो अरूज जो है वो एग्जामिनर बन रही है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, एंड हु इज गोइंग टू बी स्टूडेंट?
or should I choose randomly? एक बच्चा कोई भाग गया है, ये सुनते सार के मैं कोई रोल प्ले की एक्टिविटी करवाने लगे. अनस को स्टूडेंट बना दें. अनस, आर यू देयर? सब इंडोर्स कर रहे हैं अनस को स्टूडेंट बनाओ. ओके ओके ओके, हम अनस को स्टूडेंट बना रहे हैं. अनस, आर यू देयर? बोथ ऑफ यू कैन ओपन अप योर माइक्स, अरूज एंड अनस. There you can see the first question and I want to see. और अरूज आपने ऐसे नहीं कि सीधा क्वेश्चन ही बता देना है, ठीक है? ओके ओके ओके, ऑलराइट, हम पकड़ लेते हैं किसी और बच्ची को. सादिया Sabir, are you willing to become a student? अरूज, मतलब मैं आपको ये कहना चाहिए कि आपने सवाल ही पूछना है, बट आई ऑल्सो वांट टू सी कि अगर आप एग्जामिनर हो तो आप किस तरीके से सवाल पूछ रहे हो. एग्जामिनर ऐसे तो नहीं पूछता ना, इंट्रोड्यूस योर रिसर्च इन 1 minute, ऐसे तो नहीं पूछता ना, ठीक है? आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बनाते हो कि आपने प्रेजेंटेशन दी, इट्स रियली एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है? क्या इसके बारे में कुछ बताओ. सो लाइक देन यू पुट योर क्वेश्चन अक्रॉस, राइट? समथिंग लाइक दैट. Sadia, are you there? Raise your hand if you are there. Yaar, what is it? I think somebody should volunteer. Habiba, why don't you volunteer? Yes, ma'am. Go ahead. Right? I'm Because ready. पहले ही 9:20 हो गया, फिर तुम लोगों ने मुझे कहना है कि ज़्यादा टाइम नहीं. Okay, sure, Okay. ma'am. Okay, Aruj, come on board. चलो शाबाश. मेरा सेमिनार ही खाई हो गया. I'm there. Assalamu Okay, alaikum. that's good. Walaikum assalam. Okay. I have seen your all slides and I. एक second. कुछ माइक बंद हो गया. Yes, ma'am. Aruj. मैम उसी वक्त मेरी लाइट चली गई. Oh, चलो कोई बात नहीं, चलो आप करो. Sorry for inconvenience. Okay, as you present for your topic very well, can you briefly introduce your research problem in a quick way? you are asking me specifically about my research problem, not all about my research. Am I right? No, what if I say, just tell me your research problem is like the main topic. Okay, the main topic of my research is there are many immunocompromised patients in the hospitals, and they get hospital-acquired infections when they come and get admitted in the hospital. So my main focus was to detect and isolate the pathogens from hospital tap waters, and to check if the patients are getting getting the infection from that hospital tap water, or if that hospital tap water is well cleaned or not. That was the main question, and that was the main thing that I wanted to research. Okay, so what is the main objective of your study? I'm actually saying that why are you only choose this topic for your research? Okay, actually, I am interested in I'm more towards aligned towards the clinical and medical side, as I wanted to be a doctor when I was a little girl. So now, when I did my bachelor's and in biotechnology, I wanted to align the things with the hospital and hospital environment.
Plus I also did my internship in hospital, so that internship actually raised some of the questions regarding the cleanliness of hospital environment, especially the tap water that is actually used by each and everyone, either it's the hospital staff, hospital patients, admitted ones, or the ones who are coming and visiting the patients. So I really wanted to check, and the right now we are also working on the water surveillance. पाकिस्तान में पानी की बहुत मसले मसाइल हैं, तो इस वजह से भी इस चीज़ को चूज किया गया. Okay, this is well defined. Will you please precisely conclude your research topic importance there? Like, I would really want to know that if you study this, what type sort of gaps you fill with your study? Okay, the major findings from my study is that the hospital tap water I isolated pathogens. Isolated from pathogens that are from hospital tap water, and the SOS was one of those pathogens that was isolated from each and every one of them. SOS is one of those pathogens जो कि हमारे पास स्किन के ऊपर या स्किन वूंड के ऊपर शो होता है, वो पानी में नॉर्मली नहीं पाया जाता. तो अगर हमारे पास पानी के अंदर वो शो हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारे पास ह्यूमन कंटेमिनेशन है पानी के अंदर. So that was the major finding of my research. Okay, good. Okay, brilliant, brilliant, very nice, Aruj and Habiba. Okay, Thank you so much. तो एक तो ये कि हबीबा कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई तुम्हारी Yes, ma'am. presentation की. आपको भी याद आ गया होगा. I was there in Habiba's final defense as well. तो वो वाली इसने भी प्रोजेक्ट बताया, तो वो पुरानी वाली बातें दोबारा से मेरे माइंड में फ्रेश होने लगी हैं. अच्छा, एक चीज तो ये अरूज, बट आई रियली अप्रिशिएट इज, आप लोगों ने देखा कि बीइंग एन एग्जामिनर, हाउ शी ट्राइड टू कीप asking the next and the next and the next thing until the full thought was understood. ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉब्लम क्या था, इंपॉर्टेंस क्या है. जब तक के एग्जामिनर को उसकी सारी बात क्लियर नहीं हो गई, शी केप्ट ऑन आस्किंग, अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा मुझे ये बताओ, ये बताओ, राइट. सो एग्जामिनर को जो चीज चाहिए थी उसने बार बार नेक्स्ट से नेक्स्ट, पहले में उसको जवाब नहीं मिला, अगर उसने दोबारा अच्छा वो ठीक है चलो अब ऑब्जेक्टिव बताएं, ऑब्जेक्टिव बताया, इंपॉर्टेंस भी बताएं, ठीक है. सो वो नेक्स्ट से नेक्स्ट पे जाते गए. सो ब्रिलियंट अरूज, दैट्स अ रियली गुड वे टू आस्क क्वेश्चन. Thank you. और दूसरी चीज हबीबा के केस में, एक चीज कल आप लोगों में से आपको याद होगा कि कल किसी बच्चे ने कहा था कि हम रिसर्च टॉपिक कैसे चूज करें. हु वाज दैट? कि भाई रिसर्च टॉपिक, किरण अमजद, ठीक है, उन्होंने ये बात बताई. इधर आप लोगों ने उस वक्त, मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं बाजू का आपका कोई, जैसे मैंने अपनी बात बताई थी, तो मैंने कहा था आई हैड एन इमोशनल कनेक्शन टू द टॉपिक दैट आई सिलेक्टेड एट दैट पॉइंट इन टाइम. यहाँ पे हबीबा ने जब कहा ना कि उसने ये प्रॉब्लम क्यों लिया, ठीक है, व्हाई डिड शी पिक दैट वेरी प्रॉब्लम टू स्टडी, तो उसने उसको जो पर्सनल टच दिया, ठीक है, हेल्थ साइंसेस के हवाले से, कि व्हाई शी वांटेड some hospital related project and why. तो ये जो पर्सनल टच आप देते हो, this is also one of the ways of storytelling, ठीक है. आप उसको इमोशनल या very good, brilliant, Habiba, very good. Or okay, so moving towards the next question, Zainab Nadeem is going to be our student for the next question. And who will be the examiner? अरूज की कमेटी में कोई और है? Abdullah C.H. Chaudhary? Is that Abdullah Chaudhary? Okay. Abdullah, are you there? Hello? अच्छा भाई, एग्जामिनर कौन बनेगा? साजिदा रुस्तम, would you like to be an examiner? नैन कियानी, सादिया साबिर, माइमा मुश्ताक, साजिदा रुस्तम. मैम सादिया ने कहा है कि वो एग्जामिनर बन जाएंगी. Oh, great, great, great. Okay, Abdullah को माइक पे काम कर. All right.
Sadia Sabir is our examiner for the next question, and Zainab is the student for the next question. Are you both on board? Yes, ma'am. All right. चले जी सादिया और ज़ैनब आ जाए माइक्स पे. Okay. Thank you for your presentation. My question is for you that why did you choose this methodology over other possible methods? Sadia, can you please speak louder? आप अपने माइक के करीब हो जाएं या फिर आप थोड़ा सा ऊंचा बोल दीजिए बिकॉज आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है. यस सादिया, आप बोलें. जी मैं बोलती हूँ. Okay. ओके, ग्रेट. Thank you for your presentation. My question is, why did you choose this methodology over other possible methods? Thank you for your question, ma'am. First of all, there are multiple reasons as to why I chose this methodology for my particular research. As my research interest is mainly towards neurodegenerative diseases, and I am studying about Alzheimer's, so the main problem that we encounter with other methods is the blood-brain barrier compatibility. So there are so many viral vectors that cannot introduce themselves into the brain because of the barrier region, and they're not compatible enough. The reason I chose this method is because it was practically feasible to me. The laboratory that I was being supervised in had all the plenty of resources for me to conduct this research on the specific methodology that I adopted. Second of all, I was also preferred to adopt this by my supervisor. And other thing that I would like to mention is that there were other methodologies as well that were scientifically less rigorous and limiting. First of all, I would have gone for designing a vector that was adeno-associated, but adeno-associated viruses have a specific cargo limit, and you cannot install prime machinery into them more than 4.7 kb. So because of this limitation, I had to go for lipid nanoparticles, and the methodology was entirely synergistic in nature, and it helped me prepare that on time, and I could prepare a vector through proper engineering in a way that also helped me reduce my time, energy, and yielded me better results. Thank you. Okay. Sadia, are you done asking questions? No, ma'am. I asked. Okay. Next, what other how does your methodology help achieve your research objectives? Do you think Yes, you may ask your question first. what I said? How does your methodology achieve your research objectives? Okay, so my main research objective was to ideally optimize a delivery vehicle that can install an Icelandic mutation inside Alzheimer's brain. So I had to properly engineer a delivery vehicle. I had the gene, I had the mutation, and I also know the localization method. All I needed was to ideally deliver it into its target source. And most of the other delivery vehicles either degrade themselves or they induce cytotoxicity. So that's why the reason that this method was I used this is because it helped me achieve better results, and it also had no side effects on the Alzheimer brain. Okay, nice. Thank you so much. Great answer. Okay. I'm done. Job, guys. Okay. Thank you, Sadia. Very good. Very nice way of putting questions. And Zainab, brilliantly answered. जिस तरह से बहुत दोनों एग्जामिनर ने भी बहुत अच्छा किया, स्टूडेंट ने भी बहुत अच्छा किया. I really like the way how you answered the questions. उसके पीछे वजह क्या है? ठीक है, हमेशा जो आपका एग्जामिनर पूछता है ना, क्वेश्चंस आर वेरी शॉर्ट. ये कैसे हुआ, क्या हुआ, राइट? बट बीइंग अ स्टूडेंट, जब आपका डिफेंस है तो आपको
इसी तरीके से इतने कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताना है, ठीक है, कि सारी इंफॉर्मेशन आप उस तक कम्युनिकेट कर सको, राइट? Zainab took not that long to answer those questions, right? But मुझे यहाँ बैठे बैठे ना उसका प्रोजेक्ट समझ आ गया कि उसने करा क्या है, ठीक है? सो ये चीज होती है कि आप थोड़े लफ्जों में लेकिन पूरी बात कर जाओ, सही है, और बहुत पूरे अच्छे तरीके से एलैबोरेट करो, क्यों किया ऐसा, ऑल्टरनेटिव्स भी थे, वो क्यों नहीं यूज किया, ऑब्जेक्टिव क्या था, एवरीथिंग वाज सो एप्ट, राइट? सो वेरी गुड जॉब गाइस, सादिया एंड ज़ैनब, ब्रिलियंट. So Thank you, who is going to welcome? Who is going to act as a third pair? अब खुद ही आ जाओ भाई बच्चों, तुम लोग आज भी 10 बजवाओगे. All right, Anas is back. So Anas is going to be the student in third case, and Nan Kiani is the examiner. Very good, Nan. आ जाओ भाई. मॉक वाइवा एक्टिविटी हमने शुरू की है ना, जब उससे पहले स्ट्रेंथ थी 26, जब मॉक शुरू किया है 20 रह गए. ये आखिरी सवाल है बस, इससे पहले के 10 रह जाए मैं बता दूंगी. लास्ट क्वेश्चन है. All right, come on board guys. Okay, Should I start, ma'am? yes, sure. Okay, so I have seen your thesis and also seen your slides. So if you have to summarize your work for me, what's the most important finding in your thesis and research? Okay, thank you, ma'am, for asking the question. My findings will be based on the two things I will be sharing. I made silver nanoparticles, which I gave to my mung seeds. Alongside that, I will be looking for, I was looking for the foliar spray of those bacterial applications. So the key findings of my results are that the plant height, root length, their leaves length, also their chlorophyll content, relative water content, alongside the leg hemoglobin content, all the things I mentioned in my presentation were as compared to control were much higher than the control. So yeah, that was my key results. Okay, so are there any limitation for this method? Sorry? Are there any limitation for this method? Yes, there is a limitation. While doing my research, I took two varieties of mung bean. The first was Ramzan and the second was Nifa 2025. So while doing seed priming, I just find out that the Nifa 2025 show better results rather than the Ramzan as compared to control. So if anyone wants to try seed priming through the bacteria I've used, which is Pristaflexa, so it can give negative results. So that was a negative point for me to find out. Okay, thank you. That's all for today. Thank you. Okay, so very nice, Nan Kiani and Anas. Thank you for taking part in this activity. High time I should be ending the presentation because अब तो मेरे भी लफ्ज फंबल होने लग गए हैं present करते करते. Okay, so guys, thank you so much for taking part in this interactive session. I always try कि जो मेरी talks हो वो इस तरह ना हो कि मैं आऊँ और जो शुरू हो और उसके बाद मैं खत्म ना हो, होता यही है इनफैक्ट, बट वो इसलिए होता है because we try to interact. और जब आप interact करते हो तो time का पता नहीं लगता, right? So both the talks were really
interesting, fruitful, happening, fun thing also, हाँ, क्योंकि इंटरेक्ट करने में मुझे भी आप बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मजा आया है, और इस इंटरेक्शन में आई थिंक वी हैव लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ रिगार्डिंग थीसिस राइटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको फिर एक दफा, वो होता नहीं है जैसे आप कहते हो कि एंड पे जो बॉटम लाइंस हैं कुछ चीजों की, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। वो ये है कि भाई एक तो बेटा आप लोगों ने तमहीदें नहीं बांधनी अपनी प्रेजेंटेशन में, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कंसोलिडेटेड प्रेजेंटेशन रखो। आप लोग अपनी जो हेडिंग्स गोल्डन रूल में बताई गई हैं उससे इधर दाएं बाएं होने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। उन हेडिंग्स में आप अपना कंटेंट, अगर लिमिटेड कंटेंट जो बुलेट फॉर्म में होता है वो डालोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। बी कॉन्फिडेंट, नोबडी नोज अबाउट योर वर्क मोर देन यू, नॉट इवन योर सुपरवाइजर। आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि जब आप काम करते हो ना तो मुझे उतना नहीं आता, आपको ज्यादा आता होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहीं पे गलत इंटरप्रिटेशन उस चीज की ले रही हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो, राइट। बिकॉज जितनी डिटेल में उन स्टूडेंट्स ने वो काम किया होता है, आप स्टूडेंट्स ने वो काम किया होता है, सुपरवाइजर इज देयर टू सुपरवाइज, टू प्रोवाइड मेंटोरशिप। वो आपको मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है, आपको ये बता सकता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि गलत जा रहे हो, क्या चीज सही है क्या गलत है, राइट और रॉन्ग का डिफरेंस वो बता सकता है। लेकिन सुपरवाइजर से भी ज्यादा आप उस वक्त वेल इन्फॉर्म्ड होते हो अपने टॉपिक के लिए, ठीक है। तो यही कॉन्फिडेंस अपने दिमाग में लेकर जाया करो कि मुझे सबसे ज्यादा पता है अपने टॉपिक का, ठीक है। एंड इफ यू दैट कीप दैट थिंग इन योर माइंड, आई कैन बेट क्या आपका डिफेंस, क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीजें कभी गलत नहीं हो सकती है, ठीक है। जहां नहीं आता तो वहां पे ऐसा नहीं है क्या नहीं आता, ठीक है। तो ये नहीं किया हुआ या ये हमारे स्कोप से बियॉन्ड है ये काम, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कह सकते हो। दूसरी बात, अनस ने अभी एक बड़ी अच्छी चीज जो मैंने नोट किया, उसने कहा थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन मैम, ठीक है। सबसे पहले साइंटिफिक वर्ल्ड में ना ये जो एक एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। आपको रिव्यूअर अगर रिव्यू करके देता है तो आप उसको थैंक्स करते हो कि आपने मेरी गलती निकाली है, ठीक है। ये नहीं कहते कि भाई हाउ डेयर यू, मेरी गलती निकाल दी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। सो यू थैंक द रिव्यूअर, थैंक यू फॉर योर इंसाइटफुल रिकमेंडेशन, थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग इट, ठीक है। तो आप उसको थैंक्स करते हो बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर वॉलंटरली हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। आप रिव्यूअर को कुछ नहीं दे रहे हो उसके बदले कि वो आपका पेपर रिव्यू कर रहा है, कुछ नहीं मिलता उसको, ठीक है। तो साइंस की दुनिया में ना बहुत सारी चीज इतनी वॉलंटरली हो रही होती है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग ऑन वॉलंटरी मैनर। तो होता क्या है कि अगर आपको कोई रिव्यू करके दे रहा है, कोई आपके थीसिस को सुन रहा है, कोई आपके थीसिस को पढ़ के दे रहा है, ठीक है, कोई आपको प्रूफ रीड करके दे रहा है, कोई आपसे सवाल कर रहा है, आपको समझने की कोशिश कर रहा है कि आपको बेटर आपकी चीज बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई रेकमेंडेशन दे रहा है, फीडबैक दे रहा है, तो यू मस्ट ऑलवेज एक्नॉलेज दैट, ठीक है, कि आपने उसको सबसे पहले बी थैंकफुल टू दैट पर्सन फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड फोकसिंग ऑन व्हाट यू हैव डन, ठीक है। तो ये बिकॉज आप लोग जब MS PhD BS ये कोई भी डिग्रीज कर रहे हो तो ये हायर एजुकेशन ही होती है, ठीक है। तो आप जब ये कर रहे होते हो ना तो इट मस्ट शो अप इन योर पर्सनैलिटी ऑल्सो, ठीक है, कि आप कितनी तमीज से चीजों को हैंडल कर रहे होते हो, राइट। तो ये थैंक्स करने वाली जो चीज की बहुत अच्छी थी। बाकी ये कि यू गाइस आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा आप लोगों के साथ। और until we meet next, goodbye and good luck to those who are soon to present their thesis. Oh, thank you, Zainab. Means a lot. Thank you. Thank you, ma'am, for such an informative session. We will now move to the question and answer session. Guys and participants, this is your chance to clear any doubts you have about the presentation design, thesis defense, or viva preparation. Please feel free to raise your hand to ask directly or type your question in that chat box. Thank you. Yes, please. You're welcome. Aruj, Sadia, Amna. Welcome. Any question? I think so. कोई question नहीं है. How to overcome? Yes, Zainab asked a question. How to overcome stage anxiety during presentation. Okay, so Zainab, ये बात ना हमने कल डिस्कस की थी, स्टेज एंजाइटी वाली बात। और कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि
all of us go through that thing. Stage anxiety, मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने कल भी ये बात की थी, पहले 2 मिनट से ऊपर की नहीं होती है, पहले 2 मिनट, right? Every time you go on stage, you feel very anxious for the first 1 or 2 minutes. आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम कम होता चला जाएगा, ठीक है? अभी recently I went to China and there the audience was full of professors and like it's elite scientists and all of them. जब मैं उधर गई हूँ, पहले 2-3 मिनट मेरे बड़े शेकी थे, जब पहला सेशन था मेरा. जब उसके बाद वो सेशन हो गया, नेक्स्ट टाइम जब मैंने सेशन दिया तो आई रियलाइज कि वो 2-3 मिनट की एंजाइटी अचानक से 1 मिनट की हो गई है. नेक्स्ट 4 सेशंस थे, होते 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 वो कम होती चली गई. उसके बाद एक पॉइंट आया जब मुझे लगने लगा कि शायद ये बिल्कुल ही ना 1 मिनट भी नहीं रह रही, ये 30 सेकंड्स की एंजाइटी हो गई. व्हाई? बिकॉज आपने वो ओवरकम कर लिया, ठीक है? आपको लगा ओ यार ये तो कुछ भी नहीं था, मैं ऐसे ही डर रहा था. फिर नेक्स्ट में आपको लगेगा यार ये तो कम हो गई, मजीद कम हो गई, मजीद कम हो गई. एंड देन वुड कम अ डे जब आपके ना कुछ हार्डली 5-10 सेकंड्स की वो एंजाइटी रह जाएगी. एंड दैट्स वेरी नॉर्मल. द ओनली थिंग वी नीड टू डू इज कि हम वी शुड नॉट take it on our heads, ठीक है? I mentioned it yesterday also. I had always been a very underconfident student when it comes to like I was academically very like good. I had always been a position holder. I was a medalist in my graduation comedy. But the thing is कि I wasn't very confident. I always used to feel कि यार मैं सवाल करूँगी तो मैं तो बेवकूफ़ी लगूंगी, पता नहीं मेरा सवाल कैसा है. या आप लोग के माइंड में भी ये चीजें आती है ना? बट होता क्या है कि आज अभी मैं अक्सर बताती होती हूँ, चलो जाते जाते मैं वो बात बता दूं कि आई वाज इन एमएस और मैं किसी का, हम लोग पीएचडी कोई डिफेंस हो रहा था किसी का, एंड आई हैड अ सीनियर, वो मेरे से 5 years सीनियर थी. आई वाज इन एमएस एंड शी वाज प्रोबेबली इन द लास्ट ईयर ऑफ हर पीएचडी. तो मैं उनको हमेशा कहती होती थी कि मेरे दिमाग में सवाल आ रहे होते नहीं, मैं पूछ नहीं सकती, मुझे होता है यार कि पता नहीं कितना अजीब सवाल होगा, मैं एंशियस हो जाती हूँ. आई लिटरली यूज्ड टू शेक लाइक दिस, राइट? कि मेरी फिंगर्स भी ऐसे हो रही है, मैं ऐसे हो रही हूँ, मैं सवाल नहीं पूछ पा रही. तो और वो बहुत ज्यादा थी इस तरह से इंक्विजिटिव टाइप की, एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस लाइक इन द ऑडियंस. तो वो क्या होता था कि उन्होंने ना, हम एक दफा एक डिफेंस पे गए, वो पीएचडी का डिफेंस था, और मैंने एक सवाल लिखा. लाइक ऑलवेज सवाल तो पूछना ही नहीं ना, वो कॉन्फिडेंस होता ही नहीं था until my MS बैक इन 2017. हुआ क्या कि मैंने वो सवाल अपनी डायरी पे लिखा, वो नोट पैड या जो कुछ भी था उस वक्त मेरे पास, मैंने वो सवाल उस पे लिखा. एंड देन आई डिड दिस थिंग टू हर. शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड आई वाज लाइक, सी माय क्वेश्चन, ठीक है? और मैं उनको क्या कह रही हूँ, आप ये सवाल भी पूछें, राइट? Because that was something that was bothering me. I didn't understand that and I wanted to ask, but I didn't have the confidence or courage to ask that question. तो मैंने उनको ये कहा and she just smiled at my question and she didn't say anything, right? पीएचडी में ओपन डिफेंस होता है. जब सारी प्रेजेंटेशन हो गई तो कन्वीनर ने कहा कि द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस, राइट? सो एनीबॉडी कैन आस्क क्वेश्चंस. तो उन्होंने कहा हाँ जी, कौन पहले सवाल पूछना चाहेगा, ठीक है? माय सीनियर, आई हैड नो क्लू. व्हाट शी डिड वाज शी जस्ट रेज्ड माय हैंड लाइक दिस, ठीक है? मेरा हाथ उठा के ऊपर कर दिया उन्होंने, ठीक है? अब वो होता है ना कि आपको अब स्पॉट पे डाल दिया गया, ठीक है, उस टाइम पे. और उस टाइम पे आई डोंट नो, आई हैड प्रोबेबली thousands of emotions at the same time. I could feel that डर, खौफ और पता नहीं क्या कुछ, एड्रेनालिन रश तो था ही था उस टाइम पे, ठीक है? अब हाथ उन्होंने खड़ा किया, कहती हैं, और फिर मैं इतनी अजीब सा ही, वो फेस पे भी तासुरात आने लग जाते हैं आपके और ये सब. और फिर उसके बाद कहती हैं कि सर शी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन. और फिर मुझे इशारा कर रही है कि मुझे तुमने लिखा है वो पूछो. पहले 1-2 मिनट तो मैं अंग्रेजी बनाती रही कि सवाल, हाउ डू आई पुट माई क्वेश्चन अक्रॉस, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने खैर हिम्मत करके 1-1.5 मिनट ही लगा होगा. तो being a woman I also exaggerate things. ये 2-3 मिनट सवाल बनाती रही, ऐसे नहीं होता. 1-8 मिनट मुझे लगा होगा और मैंने वो सवाल फिर उनसे पूछ लिया, ठीक है? और जब मैंने सवाल पूछा तो जो कन्वीनर थे, he was dean of our dean sciences at our university. He said, very valid question. Those 3 words actually gave me confidence that day कि यार मैं तो ऐसे ही इतने अरसे से कह रही थी कि सोचती रहती थी सारा टाइम कि मैं सवाल नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं मतलब कैसा स्टूपिड क्वेश्चन होगा, अगला क्या सोचेगा, ये ना हो मेरी इंग्लिश की लाइन खराब हो जाए बोलने में. हाँ, so many thoughts going on in your head.
तो उस टाइम पे वो 3 वर्ड्स थे, वेरी वैलिड क्वेश्चन, एंड आई ऑलवेज से सिंस दैट डे आई हैव नेवर स्टॉप्ड, even if it's a faculty meeting, even if it's a huge elite scientific podium. I have been to international conferences just because of the way I speak, right? So see how things change just in nanoseconds. Yes, the power of taking the first step. Thanks to my senior. Well, she was more than a senior, a sister to me until today as well. And I think so that is the thing I wanted to mention. Why? Because ये कहने के लिए कि सवाल कभी भी फसूल नहीं होता. आपके दिमाग में अगर कोई चीज आ रही है ना, अल्लाह ताला ने कोई क्वेश्चन डाला है ना, that means कि कोई ना कोई चीज उससे रिलेटेड है. साइंस तो ऐसे ही चलती है ना. किसी के दिमाग में न्यूटन पे आया कि सेब नीचे क्यों गिरा, पाकिस्तान में गिरता, कहते सेब खा लो यार, तुम क्यों इतना सोच रहे हो, ठीक है. लेकिन उसको क्या हुआ, उसने सोचना शुरू किया कि why down the way, ऊपर क्यों नहीं गया हवा में, राइट. एंड दैट्स हाउ इतने लॉज उसके बन गए और वो सारा कुछ हो गया. था क्या? क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट. और वो एक मोमेंट था कि उसने सिर्फ वो just a second of observation, why did it fall down, ठीक है. So the power of taking the first step, yes, the bottom line. And then एंजाइटी की जहां तक बात है, वो हमेशा रहती है. अगर मेरी पहले शुरू हुई 3 मिनट से, होते होते होते, आप लोग तो स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स के सामने तो क्या एंजाइटी होनी. स्टूडेंट्स तो आई ऑलवेज फील लाइक कि वो अपने ही होते हैं टीचर्स के लिए. तो इस बात से मेरे स्टूडेंट्स एग्री करेंगे, बिकॉज वी आर ऑलवेज लाइक अ फैमिली व्हेन टीचिंग देम एज वेल. तो क्या कहते हैं, लेकिन ये कि एंजाइटी हमेशा रहती है, बट देयर विल कम अ डे जब ज़ैनब आप भी फील करोगे. जितना मैंने आपको सुना, यू आर अ कॉन्फिडेंट गर्ल. इट्स नॉट लाइक दैट यू आर somebody who cannot ask a question or that, ठीक है. तो आपकी जो मुझे वाइब आई है, जो मैंने वाइब कैच की है, वो कॉन्फिडेंट ही है, पर्सनालिटी आपकी. बट जो 1-2 मिनट की एंजाइटी है ना, दैट्स वेरी नॉर्मल, वेरी ह्यूमन, राइट. तो मेरा ख्याल है कि अगर तो हम वो कुछ 1 मिनट भी फील ना करें, फिर तो हम किशोर ही बन जाएंगे, रोबोट ही बन जाए. हाँ, तो वो पहला 1 मिनट बहुत जरूरी होता है हमें ठिकाने लगाने के लिए कि आगे संभल जाओ, ठीक है. तो inshallah soon sometime maybe we'll be listening to you guys as speakers. हाँ, और वहां पे आप लोग ये अपनी एग्जांपल्स कोट कर रहे हो कि how did you get rid of that anxiety, और कैसे वो एंजाइटी हो सकता है आपके से कोई बच्चे का, मुझे तो अब वो सेकंड भी फील नहीं होता, ठीक है. तो that's how it is. 1-2 मिनट चलता है, होना भी चाहिए, पता लगना चाहिए भाई कि एक जीते जागते इंसान की वो है, प्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो हर इमोशन फील करता है और फिर इवेंचुअली जो है you lace it at the end of the day. So that's about it. Okay, ma'am. Thank you for answering everyone's questions. I hope today's session has given everyone more confidence in presenting their research and preparing for their thesis defense. Okay, before we conclude, I would like to invite our CEO, Ms. Habiba Noor, to share a few closing remarks. Over to you, ma'am. Thank you so much, Maham. Thank you so much, Dr. Javeria, and each and every participant who participated throughout this whole month journey. जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड वीक पे कुछ बच्चों के नाम लिए थे, and I was really hoping and praying कि या अल्लाह ये बच्चे एंड तक रहे. And I'm really proud of you guys के जो यहाँ पे हैं, ज़ैनब नदीम, अब्दुल्ला चौधरी, अनस, माहम, some of my team members, वो बिल्कुल स्टार्ट से आ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह. And I am really proud of you guys. I'm really happy कि हमारा छोटा सा इनिशिएटिव जो हमने लिया था वो इख्तिताम को पहुंचा, और वो बहुत बहुत खूबसूरती से इख्तिताम को पहुंचा. और आई कैन सी कि हमारे पास वो बिल्कुल स्टार्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो रहे थे जो बहुत रफ से थे. रफ से मुराद है कि the students seem like they have no clue about the research, but right now they want to ask कि वो रिसर्च के लिए एंजाइटी को कैसे ख़त्म करें. नाउ दे वांट टू आस्क कि वो रिसर्च को डिफेंड कैसे करें. तो I guess there's a huge difference now. And thank you so much, Dr. Javeria. Thank you so much to each and every speaker. Honestly, Dr. Amjad आए थे हमारे फर्स्ट वीक में, उन्होंने बहुत 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 लंबे लेक्चर्स दिए और बहुत प्यारी प्यारी मिसालें दे के हम लोग को समझाया. और उनके लेक्चर्स कुछ इस तरह के थे कि जितनी बात की जाए कम है. देन मूविंग फॉरवर्ड टू मिस ज़ोहरा सिलेक्शन सेशंस, उन्होंने भी काफ़ी एलेबोरेटली लिटरेचर रिव्यू मेथडोलॉजी के बारे में बताया. देन सर यासिर के लेक्चर्स आप सबको याद होंगे, उन्होंने एंड नोट की क्लासेस दी. थैंक यू टू बायोस्किल्स कि उन्होंने
हमारे लिए एंड नोट का लेक्चर फ्री रखा। एंड नोट इज वन ऑफ दो स्किल्स, उन्होंने लिटरली 2 दिन 2 घंटे बैठ के लेक्चर दिया, एंड दैट्स नॉट एन ईजी थिंग। एक होता है लेक्चर डिलीवर करना जिसमें आप इंटरेक्ट करो, एक होता है कि आप लेक्चर को में टेक्निकल चीज़ें समझाओ भी, पढ़ाओ भी, बच्चों का रिस्पॉन्स भी लो, एक एक स्टेप सिखाओ। तो that was such a huge thing and I really appreciate that. And Dr. Javeria, my internal exam, she was my internal examiner in my thesis also, defense also. तो मैं अभी सोच रही थी कि काश कि ये लेक्चर्स मैं अपने थीसिस डिफेंस से पहले कर लेती, तो शायद जो कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हमने की हैं वो ना होती, बट It was still a very good. It was still a very good essential. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your appreciation. I have learned a lot. मैं BS ग्रेजुएट हूँ और अभी भी मैं रिसर्च के हवाले से सीख रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे अपना ही एक कोड याद आता है कि इंसान के सीखने के सिखाने का सफर हमेशा जारी रहता है, कभी भी ऐसा नहीं होता। अभी तक सीख रहे हैं। यस कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी बंदा जो है वो कहे कि मैं दुनिया की सारी नॉलेज ले चुका हूँ या मुझे सब कुछ आता है। देयर शुड बी ऑलवेज अ क्यूरियोसिटी एंड देयर इज वन मोर थिंग जिसके मैं जिक्र करना चाहूंगी। मैंने नेटवर्किंग वाला जो वेबिनार था, जो पार्ट 2 था डॉक्टर जवेरिया कम्युनिकेशन वाला, आई विल अपलोड दैट वीडियो सून इंशाल्लाह। तो उसमें मैंने बात की थी बी चाइल्डिश, बच्चा बन जाए। जिसने बच्चे हर छोटी छोटी चीज का सवाल नहीं करते बार बार, ये क्या है ये क्या है, बच्चा बन जाए, क्वेश्चंस करें। यू शुड आस्क द क्वेश्चंस, डोंट एवर थिंक कि कौन सी चीज कैसे है क्यों है। मैं यहाँ पहुंची हूँ, मैं सेशंस लीड करवा रही हूँ, मैं अपने साथ टीम को लेकर जा रही हूँ, दैट्स बिकॉज दैट अर्ज ऑफ क्यूरियोसिटी, ये चीज कैसे होगी, ये कैसे करनी है, और मैंने ये चीज सीखनी है। और जब वो सीख चुकी होती हूँ ना, तो फिर मुझे अपने आप पे जिम्मेदारी लगती है कि चीज मैंने सिखानी है। तो बस कोई एक चीज पकड़ लें, कोई एक चीज अपने साथ रख लें और जस्ट कीप गोइंग ऑन, स्टे कनेक्टेड विद बायोटेक स्क्वाड एंड बायोस्किल्स एंड ऑल द सोसाइटी जहाँ से आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फायदा हो रहा है। मैं ये नहीं कहती बायोटेक स्क्वाड के सारे सेशंस लें, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी जो लें उसको भरपूर फायदा उठाएं। मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट्स नहीं रखे थे, मैंने यहाँ पे कोई फी नहीं रखी थी, सो दैट जो बच्चा सीखना चाहता है वो खुद ही आएगा, जो बच्चा सीखना चाहता है वो खुद ही आके लेगा सेशन। हम रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड कर दी हैं। एंड रिगार्डिंग द सर्टिफिकेट्स आई एम डिस्कसिंग विद माय टीम, वी विल सी कि हम लोगों ने कंपटीशन कराना है या फिर आप लोगों के नोट्स की बेसिस पे कि आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, आप लोग नोट्स सबमिट करवाओगे, हम नोट्स को रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट देंगे। दीज आर द 2 strategies that we will follow, either one of them. We'll let you know in the groups इंशाल्लाह। तो सर्टिफिकेट्स के हवाले से प्लीज कोई मैसेज ना करें, हम लोग अभी इस चीज पे काम करें, ठीक है। Again, thank you so much, Maham and Dr. Javeria. You can conclude now. Thank you. Allah Hafiz. Okay, guys. Hafiz. Okay, thank you so much, ma'am. I would like to extend our sincere thanks to Dr. Javeria Qadir for today's insightful session and for being part of this learning journey. I would also like to thank every participant who joined us throughout these 4 weeks. Your curiosity, active participation, and commitment are what turned this bootcamp into a meaningful experience. We hope the knowledge and skill you have gained over these 4 weeks will support you in your future research journey, whether you are writing your first proposal or defending your final thesis. On behalf of Biotech Squared, thank you all for being part of the research idea to thesis defense bootcamp. We wish you all the very best in your academic and research endeavors. Looking forward to seeing you all again in our future initiatives. Thank you, everyone. Allah Hafiz. You may leave the meeting now. Thank you. Allah Hafiz.